બોલાવી લઈએ. બોલો. નમો વિતરાગાય નમો વિતરાગાય નમો અરિહંતાણમ નમો અરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાણમ નમો આયરિયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો વજ્જાયાણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ નમો લોય સૌ સાહુણમ એસો પંચન મુક્કારો એસો પંચન મુક્કારો સૌ પાવપણાસણો સૌવપાવપણાસણો મંગલાણમ ચ સૌવે સિમ મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ પરમમ હવૈ મંગલમ પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ જય સચ્ચિદાનંદ. ના ના ચાલશે. ના ના કઈ વાંધો આટલામાં બે જ લાઈન છે ને તો વાંધો. ના ગઈ વખત તમે જે આવેલા પેલું બેઠા હતા ને કલાક પેલું બોલ્યા હતા બધું, પછી તમને નાની બુક પણ આપી હતી. બુક આપી હતી. હા પણ વાંચો છો ખરા? એ થોડું થોડું વાંચીએ અને ટાઈમ મળે મોર્નિંગ ટાઈમ હોય હા તો મહિનામાં બે એક વાર વાંચો ખરા? હા એ બે કથા એ રહ્યું. તો સારું કહેવાય. એક બે વાર સારું કમ્પ્લીટ બંધ નથી થઈ ગયું તો સારું. ના ના બંધ તો નહીં થઈ ગયું બધું. પછી યાદ આવે હું શુદ્ધાત્મા છું? યાદ તો આવો બધું એ પણ કદાચ કહીએ એવું ને એવું નહીં, ખાલી ખાલી યાદ આવવું જોઈએ. યાદ બધું આ આપણે બધું કામ કરતા હોય વચ્ચે યાદ આવી જાય કે હું શુદ્ધાત્મા છું. તો કોઈ માસ કામ તમારે બરાબર કામ ના કરતો હોય ને તો પછી એના માટે અંદર ગુસ્સો આવે, પછી દેખાય ખરું કે આ શુદ્ધાત્મા છે. તરુણભાઈ બરાબર ને? અમે તો એક જ નતા ને? આ પહેલી વાર જ ભેગા છે ને આપણે તો પહેલા ક્યાં હતા તમે? ઓ હ્યુસ્ટન હતા. હા એટલે બરાબર. એટલે હવે અહીંયા શિફ્ટ થઈ ગયા. આરામ ચાલો. એટલે પૂછજો આજે તમે ત્યાં કામરેજ મંદિરે વારંવાર આવેલા છો બરાબર. એટલે આ પરિચય તમને બીજો બધો પરિચય છે કે દાદા ભગવાન કોણ, આ બધું શું છે એમ. પણ આમ તમને શોર્ટમાં કહી દઉં. તમે પહેલા આવેલા છો? જ્ઞાન લીધેલું છે? હા હા. તમે તો પહેલા હા. તો ચાલો તમારા માટે વાત કરું જરા. જો એક આપણે ટાઈમ ઓછો જરા સ્પીડમાં લઈ લો. આપણે બધા હિન્દુ ખરા ને, એટલે આપણે ધર્મ તો કરીએ કે ના કરીએ? બધો ધર્મ કરીએ. સવારે ઉઠીએ, ભગવાનને દીવો કરીએ, અગરબત્તી કરીએ, મંદિરમાં જઈએ, પછી મારા કેટલાક ફેરવતા હોય. તો કે આપણે આવું બધું કરતા હોઈએ ખરા, પણ આપણને શું થાય કે આ બધું કરીએ, આ વ્રત કરીએ, ઉપવાસ કરીએ, અગિયારસ કરીએ, જાત્રા કરીએ કે સારા કામમાં પૈસા આપીએ ને એટલે આપણને થાય કે આ બધો ધર્મ થઈ ગયો. સમજે? એક સામાન્ય. ભગવાનની વાત કેવી છે? ભગવાનની વાત, ભગવાન એવું કહ્યું કે ધર્મ એ કરવાની વસ્તુ નથી, ધર્મ એ પામવાની વસ્તુ છે. તમને સમજાય? નહીં સમજાય? ના ના એમને સમજાય. એટલે ધર્મ એ કરવાની વસ્તુ નથી, પણ ધર્મ એ પામવાની વસ્તુ છે. બરાબર. હવે જ્યારે આપણે કહીએ કે ધર્મ એ પામવાની વસ્તુ છે તો તરત પાછો પ્રશ્ન ઉભો થાય કે શું પામવાનું? ઉભો થાય કે ના થાય? તો શું પામવાનું? તરુણભાઈ બોલો. સારું સારું કામ ગ્રહણ કરવાનું. હા, સારું સારું કામ ગ્રહણ કરવાનું. બરાબર. એટલે આપણને એવું લાગે કે હું સારું સારું કરવા માંડું, સારું સારું ગ્રહણ કરું એટલે કે આપણે આ ખોટું બોલતા હોઈએ તો ખોટું બોલવાનું બંધ કરીએ એટલે કે આ ધર્મ આવી ગયા. કે આપણે હિંસા કરતા હોઈએ, ગુસ્સો કરતા હોઈએ, ગુસ્સો બંધ કરીએ એટલે ખરાબને છોડીને સારાને ગ્રહણ કર્યું. એટલે આવું જ કે ધર્મ એટલે શુભાશુભ માર્ગ. એટલે અશુભનો ત્યાગ કરવો અને શુભને ગ્રહણ કરવું. પણ ધર્મ પામ્યા કોને કહેવાય? તો કે આપણે આ સંસારમાં રહીએ, આપણા ઘરમાં રહીએ
આપણને ઘરના બધાની સાથે અથડામણ ના થાય, મતભેદ ના પડે, તો સમજવું કે આપણે ધર્મ પામ્યા છીએ. સમજાય વાત છે? ખ્યાલ આવ્યો? આપણે આપણા જ ઘરમાં રહીએ છીએ ને આપણે જ પૈસાનું ખાઈએ છીએ, આપણા જ છોકરાઓ સાથે રહીએ છીએ, તો પછી ઘરમાં કે પહેલાં ઘરમાં ને પછી બહાર કોઈ આપણી જોડે અથડામણ કરે, કોઈ આપણી જોડે મતભેદ પાડે, પણ આપણી પાસે એવી સમજણ હોવી જોઈએ, એવી સાચી દ્રષ્ટિ હોવી જોઈએ કે આપણને મતભેદ પડે નહીં, આપણને કોઈની સાથે અથડામણ થાય નહીં, ત્યારે આપણે ધર્મ પામ્યા કહેવાય. થોડી વાત ન હોય પણ સમજાય ને? અથવા બીજી રીતે કહું કે આ સંસારમાં રહીએ તો બધા કહે ને કે ચિંતા તો બધાને થાય, એમ કે ના કે? તમે તો ઇન્ડિયા મૂકીને આવ્યા છો ને ચિંતા? એમને મૂકીને આવ્યા, એ લઈને આવી ચિંતા બધી હંગાત લઈને આવી, પણ એ મૂકીને આવી બધા લઈને આવે. ના બધા લઈને આવે નહીં? માથે જ હોય. નહીં હંગાત લઈને આવી. મને એમ કે ઇન્ડિયામાં મૂકીને આવ્યા બધા. 100 બેગના પૈસા ભરવા પડે. હા, એટલે મૂકીને અમે એટલી બધી વસ્તુ લાવવાની હોય તો કે એના કરતા કે ભાઈ આ ચિંતાનું પોટલું કાઢી નાખો, કે હા. ચિંતાનું વજન કાઢી નાખો. કાઢી નાખે તો સારું જ છે ને. હા, સારું જ છે ને બાપ. એટલે કહેવા શું માગું છું કે ભારત છોડીને આપણે અહીંયા અમેરિકા આવ્યા, પણ ચિંતા બંધ થાય ખરી? નહીં. નહીં થાય, તો કે ના કમાતો એને ચિંતા થાય, કમાતો એ નહીં થાય? બંને નહીં થાય. બંનેને થયા કરે. એટલે ભગવાનની વાત કેવી છે કે ધર્મ પામ્યો ક્યારે કહેવાય? કે એને ગમે એવા પ્રતિકૂળ સંજોગો હોય પણ એને અંદર ચિંતા ના થાય તો એ ધર્મ પામ્યો કહેવાય, ને તો એ ધર્મ કરે છે. સમજાય વાત છે? કૃષ્ણ ભગવાને શું કહ્યું? જીવ તું સિદ્ધને સોચના કરે, કૃષ્ણને કરવું હોય તે કરે. કહ્યું કે ના કહ્યું? કે હે જીવ, તું શું સોચના એટલે ચિંતા, તું સાંભળે ચિંતા કરે છે, મારે જે કરવું હોય એ હું કરીશ. તો આપણે કૃષ્ણને માનીએ કે ના માનીએ? કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ કે ના કરીએ? તો પછી કૃષ્ણની વાતે માનવી પડે કે ના માનવી પડે? હવે એક બાજુ આપણે કૃષ્ણની ભક્તિ કરીએ અને આપણે ચિંતા કરીએ તો વિરોધાભાસ કહેવાય કે ના કહેવાય? તો ભાઈ સમજાય? વિરોધાભાસ કહેવાય. તમે એમની ભક્તિ કરો છો, એમને જ કહ્યું કે ભાઈ મારે જે કરવું હું કહીશ, તું ચિંતા ના કરીશ, અને છતાંય આપણે ચિંતા કરીએ તો એ વિરોધાભાસ કહેવાય. એક ભાઈ આવેલા, તે દાદાને કહેતા હતા કે દાદા મને ચિંતા બહુ થાય છે. તે હતા પાક્કા ચુસ્ત વૈષ્ણવ, પેલા મલજાદી વૈષ્ણવ કઈ રહેવા, પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં. તો દાદા કે પણ તારે હું કામ ચિંતા કહેવાય, તારે ભગવાનને સોંપી દે ને, કૃષ્ણ ભગવાનને. તે શું કે મારી દીકરી મોટી થઈ ગઈ છે 26 વર્ષથી, અને એના હજી લગ્ન થતા નથી, કે એટલે કે મને ચિંતા મને થાય છે એમ. તો ભગવાનને સોંપી દે ને. તો પેલો શું કે કોઈ દાદા દીકરી તો મારી ને, કે મારે જ ચિંતા કરવી પડે, ભગવાન થોડા કરે? સમજાય? આ વિરોધાભાસ. એટલે એક બાજુ આપણે બોલીએ શું કે બધું ભગવાન કરે છે, અને અંદર માનીએ શું હું કરું છું. એમાં પાછા આપણે ભારતીય તો બહુ પાકા, સારું સારું થાય ને ત્યારે મેં કર્યું, કંઈક બગડે કે હું શું કરું, બધું ઉપરવાના હાથમાં છે. એટલે કે હમણાં શનિની સાડા ચાલે છે ને, એ બધા પાસા ઊંધા પડે છે કે, એટલે આવું બોલે. સમજાય? તો ભગવાને શું કહ્યું? ચિંતા સંપૂર્ણ બંધ થઈ જાય. ચિંતાના સંજોગો હોય પણ એક સાચી દ્રષ્ટિના આધારે તમને ચિંતા ના થાય તો માનવું કે તમે ધર્મ પામ્યા છો. સમજાય વાત છે? અથવા તો બીજી રીતે કહું ને તો કે આપણે આ સંસારમાં રહીએ તો આપણને કોઈ ક્રોધ આવે, કોઈ માન ઊભું થાય, કોઈ લોભ ઊભું થાય, કોઈ માયા ઊભી થાય, બધું ઊભું થાય કે ના થાય? તો કે આ ક્રોધ, માન, માયા, લોભ ઊભા થાય એને શું કહેવાય? એને સડ રીપુ કહેવાય. આપણા વેદાંતમાં શું કહ્યું? અંદરના દુશ્મનો, 6 પ્રકારના દુશ્મનો: ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, મદ અને મત્સર. સમજાય? તો કે આ અંદરના દુશ્મનો એને જીતી લીધા તો ધર્મ પામ્યા કહેવાય. સમજે? થોડી વાત આપ તમને લાગશે કે આ તદ્દન નવી વાત છે, પણ સમજવી તો પડે ને. હવે આ કલયુગ છે, તમે કહે ચાલો તમારે એટલી શક્તિ નહીં, તમે જીત્યા નહીં, પણ દિવસે દિવસે તમારા ઓછા થતા જાય ને તોય ધર્મ પામ્યા કહેવા. ખ્યાલ આવે?
દિવસે દિવસે તમારા ઓછા થતા જાય ને તો એ ધર્મ પામ્યા કહેવાય. દિવસે દિવસે અંદર રહેલા ક્રોધ માન માયાલો ઓછા થાય તોય તમે ધર્મ પામ્યા છો. ધર્મભાઈ સમજાવી વાત છે ને? હવે આમાં કેવું છે, છેલ્લું આવું કીધું તોય ધર્મ પામ્યા કહેવાય. બસ બંધ થઈ ગયું. અચ્છા, થયું. અહંકાર જાય તોય ધર્મ પામ્યા કહેવાય. સમજાય? અહંકાર કોને કહેવાય? તો બોલજો, આપણે વાતચીત જ કરવા છે, એટલે નાનું જ ગ્રુપ છે ને. અભિમાન. અભિમાન. હા, અભિમાન. પછી કે ને હું છું. હું છું. એટલે અહીંયા કોઈક ઇન્ડિયાથી આવ્યો હોય અને 2-3 વર્ષમાં કંઈક આમ એવી લિંક લાગી જાય ને 2-3 વર્ષમાં પૈસા વધારે કમાય તો ભાઈ કેવો ઉડે? હવામાં ઉડે કે ના ઉડે? હવે બીજા જૂના હોય ને એની આગળ રોફ મારે એમ, એને એવું થાય કે આ તો કશું નહીં, એમ થાય કે ના થાય? એટલે આપણે શું કહીએ, અને બહુ અહંકાર આવી ગયો છે. અમેરિકા પીવા લાવી હા, પીવા. હા, તો હવે ત્યાં આગળ ત્યાં પેલું એ હતું ને, પ્રેશર હતું કે ના પીવાય એમ. અને અહીંયા એ પ્રેશર જતું રહ્યું ને, માથે કોઈ રહે નહીં. અને અહીં કોઈ માથે રહ્યું ને, ત્યાં પેલા વડીલો માથે હોય ને ત્યાં રોકે એમ. અહીંયા કોઈ ના પાડનારું ના રહ્યું ને, એટલે પછી કમાન છટકે એમ, સ્પ્રિંગ છટકે પછી. હા, સ્પ્રિંગ ઉછરે પછી. પૈસો ઉઠ્યો સારો, એમના દે પૈસો સારો. તમને કેટલા વર્ષ થઈ ગયા અહીંયા? 18 18 વર્ષ. વર્ષ થઈ ગયા ને, એટલે તમને અનુભવ સારો હોય ને. વાપવાનું તમે સાચું છે ને? કોઈ ચીજ નહીં. હા, તો આપણું જય શ્રી કૃષ્ણ બોલે એટલે હું સમજી જાઉં કે આ બરાબર છે. બહુ સારું, પણ એ સાચું ને એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. તો કે આ નોનવેજ અને ડ્રિંક આ બે સચવાઈ જાય ને તો આપણા સંસ્કાર સચવાય. ખ્યાલ આવ્યો? આપણા સંસ્કાર, આપણા જે હિન્દુ ધર્મના જે સંસ્કાર છે ને એ સચવાય. પણ આપણે તો પેલા ઘણા બધા શું અહીં આવે ને એટલે એવું માને અહીં આવી એટલે કે આપણે અહીંના લોકો જ વાત થવું પડે એમ. ઠંડીમાં ના રહેવાય એટલે પીવો જ પડે એવું નહીં. હા, કે ઠંડી બહુ પડે, બરફ પડે એટલે પીવું પડે. પણ અહીં ક્યાં બરફ પડે એ છે? માનસિંગ છે અંદર. વિચારે હવે. ના, બરાબર. માનસિંગમાં કે ભાઈ પીવો જોઈએ અહીંયા એટલે ગરમી પીવો પડે એટલે પડે. પીવાય. હા, તો બરફ પડે, ગરમી પડે. એટલે આ શું છે કે પીને વાલે કો પીને કા બહાના ચાહીએ એવું છે. આ એક સમજવા માટે કે અહીં આવી અને આ બે વસ્તુ સચવાઈ જાય ને તો આપણા ધર્મના સંસ્કાર સચવાઈ જાય, બહુ મોટું સચવાઈ જાય. એટલે તો અહીંયા રાવણ બહુ કહેતા હતા, રોમ ઇન્ડિયામાં છે. હજુ નહીં આવ્યા રાવણ આવી ગયા. ઇન્ડિયામાંથી રામ જતા રહ્યા છે હવે તો. ના, ઇન્ડિયામાં છે હોય તો રાવણ ઘેર ઘેર છે. હા, હા, બરાબર. એટલે મારો કહેવાનો મતલબ શું છે કે અહંકાર એટલે કોઈ ટાઈટ થઈને ફરે એને અહંકાર નથી કહેતા. સમજાય? શું નામ તમારું? વિષ્ણુભાઈ. અને નામે કેટલું ફાઇન છે. વિષ્ણુ ભગવાન. હા, એટલે શું કહેવા માંગુ છું કે આપણે એવું માનીએ કે આ ટાઈટ થઈને ફરે છે એટલે આ અહંકારી, પણ અહંકારની ભગવાને વ્યાખ્યા બહુ જુદી કરી. આ જે અહંકાર લાગે ને તો બહારનો અહંકાર છે, સ્થૂલ અહંકાર, એટલે કે ગ્રોસ ઇગોઇઝમ. ગ્રોસ. ભગવાને અહંકાર કોને કીધો? તો કે આ તમે આ વિષ્ણુભાઈ તમારું નામ છે, બરાબર? એટલે બધા કહે કે ના કહે કે આ વિષ્ણુભાઈ તમારું નામ છે, બરાબર? તો વિષ્ણુભાઈ તમારું નામ છે ને, એ તો પાક્કું ને? આગે વિષ્ણુભાઈ તમારું નામ છે ને? હવે તમે કહો વિષ્ણુભાઈ મારું નામ છે તો તમે કોણ? વિષ્ણુભાઈ કહે ને, હા, તમે કહો કે વિષ્ણુભાઈ મારું નામ છે તો મારું નામ વિષ્ણુભાઈ છે અને હું પણ વિષ્ણુભાઈ છું, બંને વિરોધાભાસ ના કહેવાય? કોન્ટ્રાડિક્ટરી કહેવાય. કેમ? તો કે આપણે જ્યાં જ્યાં મારું મારું કહીએ ને એ મારું અને હું બંને જુદા હોય.
શું નામ તમારું? आपका नाम? अच्छा आदि आदि. अच्छा तो गुजराती नहीं आती नहीं? नहीं हाँ 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 तो बोलना है. तुम सीख जाएंगे गुजराती समझ में आ गया ना? आज गुजराती सीख जाएंगे फिक्र मत करो। नहीं नहीं मैं आदि 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 डोंट वरी सब आ जाएगा डोंट वरी. तो जस्ट आई वॉज आस्किंग हिम कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इगोइज्म. अहंकार आप किसको बोलते हैं? तो जनरली कोई टाइट होकर घूमता है तो उनको अहंकार बोलते हैं कि बहुत अहंकारी है, उनको पैसे का अहंकार आ गया, कि इसका अहंकार आ गया, इसका आ गया. किसी को अपना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो इनका अहंकार रहता है, कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा है तो उनका अहंकार होता है, किसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं इनका अहंकार होता है. तो हम क्या बोलते हैं, इनको अहंकार आ गया. मगर ये तो जो दिखाई देता है ना वो तो स्थूल अहंकार है. इट्स ए ग्रॉस लेवल इगोइज्म. और भगवान ने इगोइज्म किसको बताया? भगवान ने. તમારી પાસે હિન્દી સમજાય છે ને? તો સારું. પિક્ચર જુઓ છો ને, સિરિયલ જુઓ ને, હા એટલે આવડે ભાઈ. तो भगवान ने इगोइज्म किसको बताया कि आदि तो आपका नाम है. परफेक्ट. योर नेम इज आदि. सो व्हाट यू विल से, माय नेम इज आदि. नाउ व्हेन यू से माय नेम इज आदि, देन हु आर यू? If Adi is your name, then who are you? Because wherever we say my, हम जहाँ भी my बोलते हैं ना, that my is separate from I. તમે ભાઈ સમજાય? દાખલા તરીકે આ ઘર છે, आप मानो कि આ घर છે, ये आपका घर है, तो आप क्या बोलेंगे? मेरा घर है ऐसा बोलेंगे ना? आदि ऐसा ही बोलेंगे, विष्णु भाई ऐसा ही बोलेंगे मेरा घर है. अभी आप जब बोलते हैं मेरा घर, इसका मतलब क्या हुआ कि घर अलग है और आप अलग है. आई बात समझ? आप बोलेंगे माय ड्रेस, तो ड्रेस भी अलग है, आप अलग है. माय कार, तो कार भी अलग है, आप भी अलग है. माय वाइफ, माय सन, माय ब्रदर, माय पेरेंट्स, जहाँ जहाँ आप माय बोलते हैं, आई and my by default they are separate. समझ में ऐसी बात है? ख्याल में? तो ये आदि तो आपका नाम है. अभी when you say आदि मेरा नाम है, तो फिर आप खुद कौन है? विष्णु भाई बोलो बोलो बोल जो बता. तुम्हें भाई समझाए ना? आत्मा. आत्मा, हाँ आत्मा. बात तो एकदम सही है कि मैं आत्मा हूं, मगर आपकी बिलीफ में क्या है? चलो आप यहाँ कोई सोशल फंक्शन में गए और कोई आपकी बात कर रहा है. नहीं मैं कोई आपकी बात कर रहा है, क्या तरुण भाई ने જોવા તો કે એમની વાત ના કરશો, કે થોડા હમણાંથી દૂર રહેજો, દેખાય છે બહુ સારા પણ પાછળથી ખંજર મારશે, અને તમે એને હેલ્પ કરી, તમને શું થાય कि हाँ मास मारा मटा वो बोले छे, ये आदमी मेरे लिए ऐसा बोलता है, मैंने उनको इतनी हेल्प की है. तो आपकी बिलीफ में क्या है? आत्मा ऐसा है कि मैं तरुण हूं ऐसा है? हाँ समझ में? हम बोलेंगे, शब्द से बोलेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, शब्द से बोलने से फायदा क्या है? आपकी बिलीफ में तो क्या पड़ा हुआ है कि मैं खुद आदि हूं. तो भगवान ने क्या बताया? भगवान ने क्या कैसे बताया कि आप सही में जो है वो आप जानते नहीं है, और आप जो नहीं है वो मान के सारा जीवन जी रहे हैं. तो आप अपनी खुद की गद्दी पे नहीं बैठे, किसी और की गद्दी पे बैठ गए हैं. तो अपनी खुद की गद्दी छोड़ के किसी और की गद्दी पे बैठ गए, उनको भगवान ने अहंकार बताया. आई बात समझ? तो भगवान की भाषा में अहंकार इसको बोलते हैं. समझाए ना? भगवान की भाषा में अहंकार, आप खुद जो है वो नहीं जानते हैं, वो जो नहीं है वो मान के जीवन जी रहे हैं, उनको भगवान ने अहंकार बताया. समझाइए बात? एक ऐसी बात है कि मानो आप इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं,
वो आपका ट्रेडिंग का काम चल रहा है, कोई आपके पास बहुत माल लेके गया, बिल बनाया, आपने फिर वो अमाउंट भी बताया, तो उसने चेक में अमाउंट लिख दिया और उनको जल्दी है, तो आपको चेक देके गया कि बाकी का बिल लेना, बराबर है, एक समझने की। अभी जल्दी जल्दी में आपने आपका अकाउंट नंबर गलत डाल दिया, 78 की जगह 87 हो गया, तो आपके अकाउंट में पैसा जमा होगा? तो हम सारी लाइफ, सारा जीवन आदि होके जीवन जीते हैं। तो आप जो कुछ भी करते हैं आदि के अकाउंट में जाते हैं, क्योंकि आप खुद को तो पहचानते ही नहीं है। तो सारा जीवन, होल लाइफ यू आर सेक्रीफाइसिंग फॉर आदि, और आदि तो आप खुद है ही नहीं। कितनी मोटी भूल थी गई, कितनी बड़ी ब्लंडर हो गई, मिस्टेक नहीं ब्लंडर हो गई। छोटी छोटी तो मिस्टेक बोलेंगे, तो बहुत बड़ी ब्लंडर हो गई, समझ में? तो एज ए हिंदू आपका जीवन का अल्टीमेट गोल है कि मैं खुद कौन हूं वो पहचानना आपके जीवन का अल्टीमेट गोल है। आई मेरी बात समझे? વિષ્ણુ ભાઈ સમજાય? હવે તો ભગવાન જ છો, વિષ્ણુ નામ છે એટલે ભગવાન જ કહેવાય ને. અને વિષ્ણુ નામ છે સાચું સારું છે ને, કંઈ પિતા કરતા નથી એટલે સારું કહેવાય ને. નામ પણ થોડા ગુણ તો છે ને. આનંદ થયો મને તો કે 18 વર્ષથી અહીંયા છે, પિતા નથી એટલે સારું કહેવાય. तो ये हमारे जीवन का अल्टीमेट गोल है, टू रियलाइज अवर ट्रू सेल्फ। हमें भक्ति करने का है, अच्छे काम कर, सब कुछ करने का है, पर क्यों करने का है? तो मैं खुद कौन हूं वो पहचानने के लिए, टू रियलाइज अवर ट्रू सेल्फ। समझ में ऐसी बात है? थोड़ी बात नई है, ऐसी बात सुनी नहीं होगी, આવું બધું સાંભળ્યું ના હોય. આપણે એટલું ભક્તિ કરો, આમ કરો, આમ કરો, આમ કરો, બધું સાંભળ્યું હોય. આ થોડીક વાત નવી છે પણ સમજવા જેવી છે. समझ पाए? तो ये अहंकार बोलते हैं. तो अहंकार को फ्रैक्चर करने का है और खुद कौन है उनको पहचानने का है. तो इसको अहंकार क्यों बोला? ये बिलीफ को कि मैं विष्णु भाई हूँ, ये जो मान्यता है, ये जो बिलीफ है, उनको दादा भगवान ने क्या बताया सिंपल भाषा में कि दिस इज द फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ. पहली अज्ञान मान्यता, और ये रॉन्ग बिलीफ है तो दूसरी बहुत सारी रॉन्ग बिलीफ आपको चिपक जाएगी. जैसे मैं इतनी उम्र का हूँ, मैं ये गांव का हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मैं यहाँ जॉब करता हूँ, मैं ये बिजनेस करता हूँ, मैं इसका बेटा हूँ, इसका भाई हूँ, इसका चाचा हूँ, इसका मामा हूँ, इसका हस्बैंड हूँ. तो क्या बाकी की रॉन्ग बिलीफ कब आपको चिपक जाएगी? ये फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ होगी तभी. समझा? फर्स्ट रॉन्ग बिलीफ होगी तो बाकी की रॉन्ग बिलीफ चिपक जाएगी. तो भगवान ने क्या बताया कि आपका जीवन का अल्टीमेट गोल क्या है? कि ये रॉन्ग बिलीफ को फ्रैक्चर करना और मैं खुद कौन हूँ वो पहचानना. समझ में ऐसी बात है? इतना ध्यान में रखना और ढूंढते रहना, और नहीं मिले तो हम लोग एवरी ईयर आते हैं, नेक्स्ट ईयर आएंगे तब पूछ लेना भाई क्या करने का है इसके लिए, क्योंकि आज तो लास्ट डे, आज जाने का है. तो भाई समझे? आज तो जाने का है. हाँ, कल जाने का है. तो 2 घंटा बैठना पड़ता है उसके लिए, मगर इट्स अ समथिंग यूनिक, समथिंग अमेजिंग टू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ. और जब आपको खुद की पहचान हो जाती है, बाद में बाहर टेंशन के संजोग होते पर आपको टेंशन नहीं होता है. बाहर चिंता के वरिस के संजोग होते
दूसरे लोग बोलेंगे कि तरुण भाई को बहुत चिंता है, मगर आपको खुद को चिंता स्पर्श तक नहीं करेगी, ऐसा हो जाता है। तभी मानना कि मुझे मेरे निज स्वरूप की, मुझे मेरे आत्म स्वरूप की पहचान हुई है। समझ में आया? ये रॉन्ग बिलीफ, मगर ये दूसरी सारी रॉन्ग बिलीफ है ने, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ये पहली रॉन्ग बिलीफ है तो दूसरी सारी रॉन्ग बिलीफ चिपक जाएगी। પહેલી અજ્ઞાન માન્યતા હોય તો બીજી બધી અજ્ઞાન માન્યતા ચોંટી જાય, એટલે બીજા બધાનો વાંધો નથી, પણ ફર્સ્ટ રોંગ બિલીફ એ ફ્રેક્ચર થાય અને તમે ખરેખર કોણ છો એ સમજાય ત્યારે આપણું કામ થાય. એટલે આટલું રાખજો, બરાબર? હવે તમને એક हाँ 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 मुझे याद करवाना, हिंदी में बोलना है सर, क्योंकि आई एम यूज्ड टू स्पीक इन गुजराती. And I'm getting the context. हाँ ना, अच्छा है. कहाँ से आप? Hyderabad. हैदराबाद. तो हैदराबाद में है तो हिंदी जानते हो, अच्छा है नहीं? Yeah, Hindi. तमिल वाले हम्म? तमिल वाले Telugu. तेलुगु. हैदराबाद वाले को प्रॉब्लम नहीं है, तेलुगु वाले को प्रॉब्लम हाँ, नहीं, तेलुगु हिंदी हिंदी का ना. हिंदी का प्रॉब्लम नहीं है. Tamil also they don't understand. Hmm. They are very रिजिड. rigid. ये अच्छा है, हिंदी जानते हो तो अच्छा है. क्या करते हैं यहाँ? मैं तो IT job करते हैं. तो ये कैसे पहचानते हैं ये आपको? हमारे यहाँ खंडेश के काम करते हम्म? अभी खंडेश के मोटर में देश प्रकटे देश वो प्रकटे भी करते हैं. हाँ हाँ, वो भी करते हैं. फ्रंट डेस्क पे काम. हाँ हाँ, तो आईटी वाले को फ्रंट डेस्क पे काम करना पड़ता है करना पड़ता है. सब करता है. सब मतलब समय समय ना, बराबर है, ऐसे लाइटली बोल रहा वो हूँ इंटरेस्ट भी है थोड़ा. हाँ. इंटरेस्ट. ना, अच्छा है ना, अच्छा है, गुड, अच्छी बात है. टाइम बहुत है मतलब. हाँ हाँ, इसलिए ये क्या है, यू आर यंग और टाइम है तो काम नहीं करेंगे, देन यू विल वेस्ट योर टाइम. नहीं तो फिर कहीं ऐसा पार्टी में जाएंगे, क्लब में जाएंगे, यू विल वेस्ट योर टाइम. तो अच्छा है ना, उनका उपयोग कर ले, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है. आपको ये बात समझ में आई? तो बाय डिफॉल्ट आई एंड माई आर सेपरेट and your ultimate goal is to realize your true self. This capital I into inverted comma, I with my is equal to Jivatma. समझ में? I with my is Jivatma, and same I without my is Paramatma. तो आप यहाँ आए तो अभी यहाँ तक आए ना, हैदराबाद से यहाँ तक, तो खुद की पहचान कर लेना. लक्ष्य में रखना कि खुद की पहचान करना है, बराबर? इतना लक्ष्य में रखना. તરુણભાઈ બરાબર? આ તો કાલે આપણે મળ્યા તો આજે ગોઠવી જ દેતો હું તો. આ 2-3 જણ માટે ચાલે, મને વાંધો નહીં. इट्स ए ये दादा भगवान जो हो गए ने, दादा भगवान का नाम था A.M. पटेल, अंबालाल मुलजीभाई पटेल, एंड ही वॉज फ्रॉम गुजरात, स्मॉल टाउन पादरण, एंड ही वॉज बॉर्न इन 1908. और ऐसा नॉन मैट्रिक थे, और बिजनेस, उनका बिजनेस था, कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था, सिविल कॉन्ट्रैक्टर थे. तो ये समुद्र में जेटी का ऐसा सब काम करते थे. तो 1958 में ही वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सोनगढ़ टू बड़ौदा. तो उस समय कंपलसरी ट्रेन में जाना पड़ता था क्योंकि रास्ते ऐसे थे नहीं, और ट्रेन भी ऐसे डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी. तो आपको वहाँ सोनगढ़ से सूरत जंक्शन आने का, फिर वहाँ से दूसरी बड़ौदा की ट्रेन लेने की. तो क्या हुआ कि 1958 का समय था, तो वो ट्रेन, दूसरी ट्रेन के लिए सूरत के स्टेशन पे बैठे थे, 3 नंबर का प्लेटफॉर्म, और शाम का समय.
तो उस समय बट नेचर मीन्स विदाउट एनी एफर्ट्स, कुदरती भीतर जो भगवान है, भगवान के ऊपर से सारे आवरण हट गए, मीन्स ऑल द कवरिंग्स ऑफ इग्नोरेंस अनवेल्ड। उनको खुद को रियलाइज हुआ कि मैं खुद कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, मुक्ति क्या है। तो विद इन 1 आवर उनके सब कुछ दिखाई दिया और उनका देह और भीतर के भगवान, देह और आत्मा दोनों अलग हो गए, सेपरेट हो गए। तो तब से फिर वो देह से अलग अपने निज स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में ही रहते थे। ऐसे उनकी स्टेट ऑफ बीइंग हो गया, ऐसे उनकी दशा हो गई। तो ये जो सारी बातें हैं ना, ये दाता भगवान की बातें हैं। मगर एक क्या बहुत बड़ा आश्चर्य था कि उनको खुद को जो अनुभव हुआ वही अनुभव दूसरों को करा सकते थे। इट्स समथिंग अमेजिंग। उसमें क्या और कुछ नहीं है, आपकी भीतर से सारी पूरी दृष्टि चेंज हो जाती है। ये वेदांत में ऐसा बोलते हैं कि संसार में 2 प्रकार की दृष्टि होती है, 2 प्रकार की विजन होती है। एक बहिर्मुखी एक्सट्रोवर्ट और दूसरी अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट। तो सारे जगत की दृष्टि बहिर्मुखी होती है। बहिर्मुखी का मतलब क्या है कि बाहर की ओर देखते रहते हैं, और आप बाहर की ओर देखेंगे तो आपको बाहर का सब कुछ दिखाई देगा। बाहर देखेंगे तो बाहर का सब कुछ दिखाई देगा, और बाहर जो जो अच्छा अच्छा दिखाई देगा ना, तो आपको भीतर एक ओपिनियन फॉर्म हो जाएगा कि इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है, इसमें सुख है। और फिर वो सुख पाने के लिए वो सुख के पीछे भागते हैं। सिंपल बात है, समझ में आई? તમને સમજાયું? આ દ્રષ્ટિ બહિર્મુખી હોય એટલે બહાર બધું મટીરિયલ દેખાય, એટલે મટીરિયલ જોઈ અને અંદર અભિપ્રાય ઊભો થાય કે આ મટીરિયલમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, આમાં સુખ છે, એટલે ભૌતિક સુખો પાછળ દોડે। सिंपल बात। तो कि ऐसा चलता रहता है। और जब उनको ऐसे कोई ज्ञानी मिल जाए, ज्ञानी जो उनकी दृष्टि को चेंज कर दे 180 डिग्री, तो क्या होता है कि बाहर का उनका एज इट इज रहता है, मगर भीतर से पूरा चेंज हो जाता है। तो शास्त्र में ऐसा बताया कि आपकी दृष्टि चेंज हो गई इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। योर दृष्टि जो एक्सट्रोवर्ट है वो इंट्रोवर्ट हो गई, आपकी दृष्टि जो बहिर्मुखी वो अंतर्मुखी हो गई, मेरी दृष्टि जो बाहर की ओर है वो खुद के भीतर गई, तो आपका काम हो गया। आदि समझो ऐसी बात है। यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, नो प्रॉब्लम, गो ऑन आस्किंग। आईटी वाले हैं तो ऐसा कुछ सॉफ्टवेयर ढूंढ लेना कि आई एन माई सेपरेट हो जाए। चिंता बंद हो हाँ, वो नहीं आए तो चिंता बंद हो जाए, ऐसा ढूंढ लेना। नहीं तो दूसरा छोटा छोटा निकलेगा। किसी को क्रोध है तो सॉफ्टवेयर यूज कर दिया, क्रोध बंद हो गया। लोभ है, वो सॉफ्टवेयर यूज किया, लोभ बंद हो गया। ऐसा कि ढूंढ के निकालना। ये AI वो सब निकालते हैं, ऐसा भी कुछ निकालना चाहिए। બરાબર ને? એટલે આવું છે આખું। એટલે દાદા को ये पूरा सेपरेट हो गए और निरंतर फिर वो अपने आत्मस्वरूप में रहते थे। तो दादा क्या बोलते, उनको ऐसे अभी लोग ऐसे दादा भगवान के नाम से पहचानते। तो दादा क्या बता रहे थे कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो ये AM पटेल हूँ, मगर
ये दादा भगवान कौन? तो 1958 में भीतर के भगवान के ऊपर सारे आवरण हट गए, भीतर के भगवान पूर्ण रूप से प्रकट हो गए, वो दादा भगवान है। और वही दादा भगवान आप सबके भीतर भी है। सिंपल बात है। फिर आगे क्या बताया कि हमें 1958 में ज्ञान प्रकाश हुआ, वो 360 डिग्री हुआ, मगर ये कलयुग चल रहा है, कलयुग का प्रभाव है, ये बॉडी भी कलयुग का है। तो हमें डाइजेस्ट कितना हुआ? 356 डिग्री। तो हमारी 4 डिग्री बच गई, बाकी रही 360 पूर्ण भगवान होने में। तो हम क्या करते हैं? हम भी हमारे भीतर रहे हुए दादा भगवान की, भीतर रहे हुए आत्मा की, भगवान की भक्ति करते हैं, ऐसा बताया था। એટલે આ जब बोले थे दादा वन असीम जय करो, ये है। फिर तब आप जब बोलते हैं दादा वन का असीम जय, तभी ये ख्याल में रखने का कि मैं तरुण मेरे भीतर रहे हुए भगवान की भक्ति कर रहा हूं, है बस ऐसा ऐसा करने का। तो ये दादा की ऐसे सब बातें हैं। तो अच्छा हुआ आप गलती से यहाँ आ गए, चट्टानूगा आ गए, उनके साथ कांटेक्ट हो गया, तो फ्रंट डेस्क संभालते हैं। और उनको भी याद आ गया कि चलो आदि को फ़ोन करते। फिर हिंदी में बात करते, मैंने पूछा ये कौन है? तो कि हैदराबाद के है। तो गुजराती आती है कि नहीं? गुजराती नहीं आती। तो ठीक है चला आने दो, गुजराती में नहीं बात करेंगे, हिंदी में बात करेंगे। ये संजोग ही नहीं मिलता है, बहुत भारी पुण्य का संजोग होता है ना, तभी ऐसी बातें सुनने को मिलती है, हमें शास्त्र की बातें सुनने को मिलती है, मगर आध्यात्म की बात नहीं होती। आध्यात्म का मतलब आत्मा के सन्मुख होना, आत्मा के सन्मुख होना। तो मैं जो बता रहा था ना कि लोगों की दृष्टि बाहर की ओर है, तो लोग ये मटेरियल में सुख ढूंढते हैं, मटेरियल में सुख नहीं ढूंढते। तो कैसा है कि नॉट ओनली ह्यूमन बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग इन दिस वर्ल्ड, दे आर सीकिंग हैप्पीनेस विदाउट एनी एक्सेप्शन। बराबर है? समझ में आई सी बात है ने? समझाય તમને? બધા સુખ શોધે કે ના શોધે? તમે અમેરિકા કેમ આયા? सुख માટે જ આયા ને? आप यूएस में क्यों आए? સુખી કરવા માટે. हाँ हाँ તમે શા માટે આવ્યા બોલો ને? હા એટલે બરાબર છે. હા એમાં શું છે કે આપણે બધા એવું જ વિચારીએ કે ભાઈ અમેરિકા ગઈને આપણે જ્યાં સુખી છીએ, અહીંયા એમાં પછી ખબર પડે કે કેટલું સુખ છે. પોતાની આવું ના કહેતા, ત્યાં બધા આવું ના કહેતા. મારો સવાલ ખોટો એટલે કેવું ના ના, બહુ સારું કહે છે કે આપણે બધા આવ્યા અહીંયા સુખી થવા માટે, પણ અહીં આવ્યા પછી ખબર પડે અહીંયા કેટલું સુખ છે કે. તો પણ પાછા કેમ નહીં જતા? હા પણ તમે કેમ ના ગયા 18 વર્ષથી પાછા? મને તો સુખ જ છે, હું બધી જગ્યાએ સુખ જ માનું. તો સારા મારું, એ સારું, એ ગમ્યું મને. સુખ માનતો એમ જો સુખ જ માનું. હું એક તમને સિમ્પલ વાત કરી શકું ખરો? કહો વાંધો નહીં. એટલે એમાં શું છે કે જે માણસ ઇન્ડિયામાં વ્યવસ્થિત રીતે એવું ને કે સારી રીતે જીવી શકે એટલો જો પૈસો હોય ને તો યુએસમાં મારી ગણતરી નહીં હોય. હા, જે મારે તો દાખલા તરીકે મારી વાત કરું, મારે ઇન્ડિયામાં એકદમ નોર્મલ પરિસ્થિતિ, સમજી લો. એમને બી ખબર છે આ અમે આજુબાજુના ગામના જ છે. આવેલા તમારા ગામ મુરદના છે. ઓ મુરદના. હું મુરદનો. દિનેશલાલ દિનેશ, હા Yeah. દિનેશભાઈ પટેલ, Yeah. જ્યોતિબેન. જ્યોતિને દિનેશ પાદર પર વેકે. હવે પાછળ મોટું મકાન છે ને? સમજી ગયો. એટલે એમાં શું છે કે મારી પરિસ્થિતિ ઇન્ડિયામાં 2 ભાઈ ને 10 વીઘા જમીન, ને જમીનમાં હવે તમને કહો ને કે આ ઠીક છે, પેલું શેરડી એવું તો બહુ બને જ નહીં, ડાંગર બને. ને અમે 2 ભાઈ સુરત ડાયમંડમાં આવતા હતા. એટલે ટૂંકમાં ઘણું બની કે ત્યાં
ખાવા જોગું નીકળ્યા કરતો હતો પણ મારી મધર અહીંયા હતા, મારા મામા એરિઝોના ફિનિક્સ. મારી મધર અહીંયા 20 વર્ષ રહ્યા. અમારી ફાઇલ મૂકી અમે આવ્યા. હા, કામ તો બધા જ છે, ત્યાં બી કામ હતું, અહીં બી કામ છે. હા, બરાબર છે. પણ અહીંયા કેવું છે, અહીંયા અમે કામ કરીએ, બધા મોટું ફેમિલી મોટું છે, મારી પ્રોપર્ટી છે. તો પેલું કેવું કે કામ કરતા આપણને પેલું કેવું કે બધી રીત થોડું ઘણું સુખ આપણને દેખાય છે હા, બરાબર. કે ભાઈ પૈસા ટકા આપણે કેવું કે ઇન્ડિયામાં કેવું કે આપણે હોતા ઇન્ડિયા કરતા ફાર બેટર એમ. હા એમ બરાબર. ના ના, એ સારી વાત છે. આ છે કે ભાઈ અહીંયા આપણે પણ હું તમને શું કહું છું, કહેવા શું માગું છું कि आ दुनिया में ये दुनिया में सब लोग सुख के पीछे भागते हैं ना, और अभी આ ભૌતિક સુખ हाँ बराबर है। तो मैं क्या बताऊं कि बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं? उनको लगता है कि अच्छे मार्क्स आएंगे ना तो हैप्पी हो जाते हैं, सुख के लिए। फिर कॉलेज में जाते हैं, बोलेंगे अच्छी डिग्री ले लेंगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, फिर अच्छी जॉब मिल गई तो सुखी हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं अभी इंक्रीमेंट आ जाए, प्रमोशन आ जाए, तो ऐसे ये सुख की उनकी बिलीफ चेंज होती रहती है। मगर अल्टीमेटली उनको चाहिए क्या? सुख चाहिए। मगर कौन सा सुख ढूंढ रहे हैं? उनको सबका देख के देखता है ये सुखी है, ये सुखी है, ये सुखी है, तो उनको लगता है ये क्यों सुखी है, तो उनके पास बहुत पैसे इससे सुखी है। फिर पैसे के पीछे भागेगा, थोड़ा पैसा कमाया फिर भी भीतर सुख नहीं आता है, तो सोचेगा क्या करे, तो बोलते चलो शादी करेंगे तो सुख आएगा। आपकी शादी होगी? हाँ, तो शादी के बाद सुख आएगा ना। शुरुआत होगा तो ये क्या, एक बार क्या होता है कि मैं अच्छा पढ़ लूँ, फिर होता है कि मैं अच्छी जॉब मिल जाए, फिर होता है मैं अमेरिका चला जाऊँ, फिर बोलता है अभी तो ये सब हो गया, पैसा भी हो गया, अभी आई एम हैप्पी, तो अभी क्या करूँ, तो और हैप्पी लेने होने के लिए कि चलो शादी कर लूँ। फिर शादी होगी, फिर होगा कि अभी शादी की बाद में भी सुख नहीं आता, तो क्या करेंगे, तो कि ये जो है ना वो सोशल काम करते हैं ना, उनको बहुत रिस्पेक्ट मिलता है, तो चलो थोड़ा सोशल काम करेंगे। ऐसे करते करते उनकी सुख की बिलीफ ऑफ हैप्पीनेस इज एवर चेंजिंग। समझा? पैसे में सुख नहीं है, पैसे में सुख है ऐसे बिलीफ है। अच्छा मकान है उसमें सुख है ऐसे बिलीफ है, अच्छी गाड़ी में सुख है ऐसे बिलीफ है। समझ में? तो ये दुनिया में हम बोलते हैं कि सारा भौतिक सुख, ऑल दिस मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस इज टेम्पररी, और उसमें सुख नहीं है, ऐसा बोलते हैं, मगर किसी को ऐसा लगता है? तरुण भाई ऐसा लगेगा? नहीं लगेगा। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। વિષ્ણુભાઈ તમને સમજાવું, આ તમારે ક્યાંક લોંગ ડ્રાઈવ પર જવાનું હોય અને हाँ, आपको कोई लॉन्ग ड्राइव पे जाने का है और रिमोट प्लेस पे जाने का है कि जहाँ कितने टाइम तक पेट्रोल पंप गैस स्टेशन भी नहीं आता, ऐसा रिमोट प्लेस, तो आपके साथ कोई यंगस्टर है, बराबर है, अभी आप दोनों को भूख लगी है, कड़ी भूख लगी है, तो कुछ ढूंढेंगे, तो ऐसा कोई जगह मिल गया, पहुंचते हैं, तो बोलते हैं यहाँ तो हम सिर्फ नॉन वेज मिलता है, वेजिटेरियन कुछ नहीं मिलता है। और आपके साथ जो यंगस्टर है वो नॉन वेज खाता है, तो बोलेगा जो आप बोलो तो चिकन बना के दे दूँ, तो आपके साथ जो यंगस्टर है वो ही विल बी वेरी हैप्पी, बोलेगा चलो बहुत अच्छा है, बहुत है, यमी यमी बोलेगा, बराबर, और खाएगा और हैप्पी भी हो जाएगा। और आपको वही चिकन ऑफर करेंगे तो वो यंगस्टर बोलेगा अरे अरे अंकल आज नहीं मिलता है, आज का दिन खा लो, बहुत अच्छा है। ठीक है, आपको नॉनवेज नहीं खाना तो उनका ये ग्रेवी तो पी लो, खा लो, समझ में? मगर आप टच भी करेंगे, उनको टच भी नहीं करेंगे। मेरी बात समझे? तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि ये जो खाना जो सुख देता है, ये नॉनवेज जो सुख देता है, तो वो यंगस्टर को भी सुख देगा और आपको भी सुख देगा। मैं दैट इज नॉट द ऐसा सिचुएशन ही नहीं कि उनको सुख मिलता है वो खुश हो जाए, यमी यमी, और आपको तो
यू विल नॉट इवन टेस्ट इट। सिंपल बात है। इसका मतलब क्या है कि जो मटेरियल में सुख है तो चिकन उनको भी सुख देगा, आपको भी सुख देगा। तो क्या नहीं, मटेरियल में सुख नहीं है, मगर योर ओन बिलीफ इन दैट मटेरियल मेक्स यू हैप्पी। और आपकी बिलीफ नहीं है तो इट विल नॉट मेक यू हैप्पी। आदि समझा? तो पैसे के पीछे लोग भागते हैं, वो उनकी बिलीफ में क्या है कि इफ आई हैव मनी आई विल बी हैप्पी, इफ आई हैव मनी आई विल बी हैप्पी। तो बिलीफ की वजह से उनको सुख लगता है। तो इस जगत में जो भी सुख है, सारा सुख, ऑल द मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस is not really existing. It is simply belief based happiness. समझो? आपकी मान्यता है तो आपको सुख लगेगा। अरे यहाँ आते हैं सत्संग में, कोई सोचेगा मैं फ्रंट में आके बैठ जाऊं, और कोई क्या सोचेगा बीच में सीट खाली तो बोला लास्ट में जाके बैठ जाऊं। सबकी बिलीफ अलग अलग नहीं है। समझे? समझ रहे? सबकी बिलीफ अलग अलग है। तो उनकी बिलीफ के हिसाब से उनको मिलेगा तो उनको सुख आएगा। मगर व्हेन यू रियलाइज योर ट्रू सेल्फ, तो आप बिलीफ बेस्ड हैप्पीनेस पर से बाहर आते हैं और रियली एग्जिस्टिंग जो हैप्पीनेस है, रियल हैप्पीनेस, उनकी प्राप्ति होती है। तो हमारा गोल क्या रखना चाहिए कि अमेरिका आए, ठीक है, काम करेंगे, पैसे कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, बट गोल में क्या रखना चाहिए? द अल्टीमेट गोल ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ इज टू रियलाइज आवर ट्रू सेल्फ, टू रियलाइज आवर परमानेंट हैप्पीनेस। વિષ્ણુભાઈ સમજાય છે ને? ગમે છે ને? આ વાતો ગમે તો સારું છે. તમને ગમે? પૂછજો પૂછજો તમે. આ પૂછવાની જગ્યા છે કે આપણે ટાઈમ ઓછો હોય, જલ્દી પૂરું કરવાનું છે ને, એટલે બતાવો કે પૂછજો તો પૂછજો. આદિ સમજ પાયા? कि अभी आपको આપણે કેટલા વાગે સુધી વાત કરી મને કહી દેજો પહેલાથી. હા, કેટલા વાગે? 7 થયા નહીં? તો આપણે 15 મિનિટ ચાલશે ને? ચલેગા ને? હા હા, તમે નાસ્તાને છોડો ને, હાંભળો તમે, એ તો પછી બેસશે થોડું. तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ध्यान में इतना इतना तो पक्का कर लेना, निश्चय कर लेना कि मुझे ऐसा, मुझे आई वॉन्ट टू रियलाइज माई ट्रू सेल्फ, इतना पक्का कर लेना. और ये ट्रू सेल्फ को रियलाइज करते तो परमानेंट हैप्पीनेस मिलती है. मैं वहाँ तक इंट्री में भी आपको हैप्पीनेस तो चाहिए कि नहीं चाहिए? सुख तो चाहिए ने વિષ્ણુ ભાઈ? સુખ તો જોઈએ ને? શું નામ શું તમારું? સુખ તો બધાને જોઈએ. પ્રવીણભાઈ. એમ નહીં, સુખ તો બધાને જોઈએ છે ને. હા, હું ક્યાં ના પાડું છું, હું ક્યાં ના તો પાડું છું? કરવો પડે ને આપણે. હા હા, ના, હું ના નથી પાડતો. સુખ લેવા માટે આપણે સુખ પોતે કરવો પડે. ના ના, એ બધું કરવાનું. હું શું કહું છું કે આ પેલું તો પરમાનન્ટ હેપીનેસની વાત છે, પણ આ વ્યવહારમાં સુખ જોઈએ કે ના જોઈએ? वो परमानेंट हैप्पी अल्टीमेट हैप्पीनेस की बात कर दी. मगर व्यवहार में भी आपको सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? तो व्यवहार में सुख चाहिए तो क्या करना, उसका मैं एक आपको साइंटिफिक रास्ता बता देता हूँ. साइंटिफिक, नॉट रिलीजियस, साइंटिफिक. इट्स अ साइंटिफिक एंड रिलीजियस बोथ वे. मगर रियली स्पीकिंग आवर रिलीजन इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स. हमारा जो धर्म है वो वैज्ञानिक सिद्धांत पे बेस है, बट एट प्रेजेंट वी डोंट नो द प्रिंसिपल्स, सो वी जस्ट फॉलो रिचुअल्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट. बट इफ वी अंडरस्टैंड देन इट विल, वी विल बी बेनिफिटेड मोर एंड मोर. तो दादा भगवान ने
एक सुखी होने की मास्टर की दी थी। आदि हम अभी कब मिलेंगे मुझे पता नहीं है। यू वांट इट? पक्का बोलना, बिकॉज नेक्स्ट व्हेन आई विल कम आई विल आस्क यू कि वेदर यू यूज इट और नॉट। हाँ, ये तो मुझे बोल रहे थे, ये है ना। हाँ, कि मैं महीने में 1-2 बार करता हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। हर रोज डेली जस्ट यू हैव टू स्पेयर 5 मिनट्स फॉर हैप्पीनेस। होगा? વિષ્ણુભાઈ થાય ને? સિમ્પલ છે. In the morning when you wake up, whatever time you wake up, first thing, ask for the strength from the God. You believe, God you believe. राम है, कृष्ण है, महावीर है, हनुमान जी है, माता जी है. भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है एक दूसरे के साथ. प्रॉब्लम मनुष्य के एक दूसरे के साथ है, क्योंकि मनुष्य है ना, સાચી વાત છે. मनुष्य ना बुद्धि वाला है, तो बुद्धि भेद खड़ा करती है. तो आप जो भी भगवान को मानते हैं उनके पास सुबह में उठ के 5 बार शक्ति मांगना. मैं एक बार बुलाता हूँ. प्राप्त मन वचन काया से, प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो दुख न हो. સિમ્પલ હે. એટલે ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? પ્રાપ્ત મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ दुख न हो. सिंपल है. आदि आपको समझ में आया? तो सुबह में उठते ही आपको 5 बार ये शक्ति आप जो भगवान को मानते हो उसके बाद मांगने का और भीतर निश्चय करने का, तय करने का. यू डिटरमाइन विद इन, यू रिजॉल्व विद इन that during the whole day come what may I don't want to hurt any living being. बराबर है? सिंपल. कि वो मन से वाणी से और काया से मुझे किसी को दुख देना नहीं है, इतना तय कर सकते हैं, निश्चय कर सकते हैं. सिंपल. अभी फिर क्या करने का कि रात को सोने से पहले 2 मिनट देख लेने का कि मैंने सुबह उठते ही 5 बार शक्ति मांगी, निश्चय किया, फिर भी सारे दिन में जाने अनजाने में नोइंगली अननोइंगली ऐसा हो जाएगा दैट के यू मे हर्ट समबडी. बराबर है? जाने अनजाने में ऐसा हो जाएगा कि आप किसी को दुख दे देंगे. तो किसी को दुख हो गया तो क्या करना? जो भी व्यक्ति को दुख हुआ ने, उनके सब जीव मात्र के भीतर भगवान तो है नहीं, तो उनके भीतर जो भगवान है उनके दिल से माफी मांग लेना. પ્રવીણભાઈ થાય કે ના થાય? ના થાય થાય હો ટકા. થાય ને? એટલે તમે 100% બોલો છો. હું ફરી આવવાનો છું. તમે બાય ચાન્સ તમે નહીં આવ્યા, હું તમારા ઘરે આવી જઈશ, ચેક કરીશ તમે કરો છો કે નથી કરતા. મને બપોરે જ આપણા સિદ્ધેશભાઈ રિંગ મારી કે ભાઈ આ રીતનો આપણો પ્રોગ્રામ છે એટલે તમે આવશો. હું કહા 100% આવો. ના, સારું કરી જો, સારું કર્યું પણ તમે આવી ગયા. ટૂંકમાં તમે તો કહો ને કે આ કણુભાઈ અમારે હેઠે જાય, મારી વાળા ગાડીનો પ્રોબ્લેમ હતો, કણુભાઈ નીકળી આવેલા, પણ ગાડી એટલે ફટે એમ કે 5-10 મિનિટ મોડું થાય એટલે કઈ નહીં, પણ જવું તો એ છે. તરુણભાઈને ખબર નહીં પડે ને, તમે લઈને ના, આવો. એવું નથી, કણુભાઈનો બોલ નહીં, મારો બોલ છે. હા, ભાઈ એ દીકરી આવ્યા પછી ફોન તરુણભાઈ તો ક્યારના આવી ગયેલા અહીંયા હા, એ બરાબર છે. બધું ગોઠવવા કરવા માટે. યા. એટલે હું શું કહું, હું શું કહેતો છું કે તમે પછી રાતના આવી રીતે માફી માગી લેજો. कई तो माफी मांगी हो तुमने बोलाओ. रात को कैसे माफी मांगना वो भी आपको बुलाता हूँ. हमारे भीतर जो भगवान है अंतर्यामी परमात्मा, उनके समक्ष माफी मांगना. क्योंकि बाहर किसी के पास माफी मांगेंगे ना तो फिर हम थोड़ा ऐसा लूपहोल रखेंगे, और भीतर के भगवान को सब कुछ पता है, तो उनके साथ कुछ छुपाने का रहता नहीं. बराबर. हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हरेक जीव मात्र में विराजमान है. वैसे ही मुझ में भी विराजमान है. आपका स्वरूप
आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा है। हे शुद्ध आत्मा भगवान, हे शुद्ध आत्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता की वजह से अज्ञानता की वजह से मैंने जो जो दोष किए हैं, मैंने जो जो दोष किए हैं उन सभी दोषों को उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। इनके लिए इनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, मुझे क्षमा करे, क्षमा करे, क्षमा करे, और फिर से वैसे दोष कभी भी न करूं। और फिर से वैसे दोष कभी भी ना करो। ऐसे आप मुझे शक्ति दे। ऐसी आप मुझे शक्ति दे। हे शुद्धात्मा भगवान, हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसे कृपा करें आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સમજાય? સમજવા આયા? સમજાયું ને વિષ્ણુભાઈ? એટલે ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ કે હે અંતર્યામી પરમાત્મા, આપ દરેક જીવ માત્રમાં બિરાજમાન છો, તેમજ મારામાં પણ બિરાજેલા છો. આપનું સ્વરૂપ તે જ મારું સ્વરૂપ છે. મારું સ્વરૂપ શુદ્ધ આત્મા છે. પછી અંદરના ભગવાનને આપણે માગીએ કે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, હું આપને અભેદ ભાવે અત્યંત ભક્તિપૂર્વક નમસ્કાર કરું છું. અને કહે છે અજ્ઞાનતાએ કરીને મેં જે દોષો કર્યા છે તે સર્વ દોષોને આપની સમક્ષ જાહેર કરું છું. તેનો હૃદયપૂર્વક ખૂબ પસ્તાવ કરું છું અને આપની પાસે ક્ષમા પ્રાર્થું છું. હે પ્રભુ, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, અને ફરીથી આવા દોષો ક્યારેય ના કરું એવી આપ મને શક્તિ આપો. પછી કહે હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન, આપ એવી કૃપા કરો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય. અત્યારે જ્યાં ત્યાં ભેદ પડે કે ના પડે કે આ સ્વામિનારાયણ છે, કે આ વૈષ્ણવ છે, કે આ શૈવ છે, કે આ મુસ્લિમ છે, કે આ પારસી છે, કે આ ક્રિશ્ચિયન છે, તો કે અમને ભેદભાવ છૂટી જાય અને અભેદ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય. અમે તમારામાં અભેદ સ્વરૂપે તન્મયાકાર રહીએ. કારણ કે તમે आप देखेंगे जो भगवान होते हैं ना, भगवान की अभेद दृष्टि होती है. भगवान को कभी भेद नहीं होता है. भगवान की दृष्टि कैसी होती है कि वननेस विद द होल वर्ल्ड. और हमें ये बुद्धि की वजह से सब जगह भेद खड़ा होता है. तो जैसी भगवान की अभेद दृष्टि है ऐसी दृष्टि की मुझे प्राप्ति हो जाए. भगवान की निर्दोष दृष्टि है, किसी को दोषी देखते ही नहीं है, ऐसे निर्दोष दृष्टि की प्राप्ति हो जाए, ऐसा हम भगवान के पास मांगते हैं. नहीं मांगना चाहिए विष्णु भाई? ना मांगू जी? પોતે આપણે કરો તો ભગવાન છે, કર્મ કરો તો ભગવાન જ છે. હા હા બરાબર છે. ભગવાન કર્મ ના કરો, કર્મ ઊંધું કરો તો જો ભગવાન આવવાના છે, નહીં આવવાના. એવું નહીં પા કરમ ઊંધું કહ્યું માફી માગવાની ને. માફી કર્મ કરતો જ બંધ કરો ને, માફી જો માગો આપણે કેમનો બંધ થાય? એ તો થાય એ જ જોવાનું છે એ બંધ નહીં થાય, એ બંધ ના થાય. એ છે ને એ તકલીફ છે ને માણસ. એ ગમે એટલું નક્કી કરે, તમે બંધ કરી દીધા? અમે બંધ કરી દીધા. બંધ કરી દીધા? મને કોઈ ગમન નહીં, કોઈ આપતો ગમન નહીં, કોઈ શાન નહીં. ને એવું નહીં. કર્મો બંધ કરી દીધા એમ કહું. કર્મો બને છે, ખરાબ કરવાનું જ નહીં ને. તો સારું કરવાનું.
સારું જ કરવાનું. તો સારું કરવું એ કર્મ ના કહેવાય? કર્મ સારું જ કહેવાય ને, તો ભગવાન સુખી રાખે ને આપણને. ઓહો, પણ ભગવાને તો એવું કીધું. તો તમે આ કૃષ્ણ ગીતા બરાબર વાંચી નથી ત્યારે? ગીતા વાંચી મેં ગીતા વાંચીને તમને કહું છું. ગીતા ભગવાન વાંચી. પોતે રાવણ હતો, કેમ સીતાજીને ઉપાડી ગઈને મોત હતું. ભગવાન હાથે મોત કરવું ન કે તો ખબર હતી. એટલે હું તમને સીતાજી એ મહાન સમજાવ બીજી તરફ હતો. એ સમજાવવા એટલે માંગુ આપણે અત્યારે શું કરે? એ જ સમજાવવા માંગુ કે ભગવાને શું કીધું કે આ अर्जुन ये जो अर्जुन है ने, अर्जुन को कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी थे, ऐसे अर्जुन के कजिन थे, बुआ का बेटा। तो क्या हुआ कि युद्ध के मैदान में वो युद्ध भूमि के नियम के मुताबिक कृष्ण भगवान अर्जुन को रथ में बिठा के सारी युद्ध भूमि का चक्कर लगाते। પણ સાથી કેમ બન્યા? फिर मेरी बात तो सुनो। फिर अर्जुन को बताते कि ये सब आपके दुश्मन है, उनको मारने का है, और ये सब आपके मित्र है, उनका रक्षण करने का है। પહેલા એક જો સાથી કેમ બન્યા? सारथी क्यों बना? क्यों? कर्म फल था, ના. दोनों का आमने सामने कर्म फल था। કર્મને પેલા અર્ધમાં 100 હતા, અર્ધમાં ગયા. ભગવાન પોતાના ભાઈ કેમ રહ્યા? કે સાચા માર્ગમાં હતા. અને આપણે શું કરે છે? પછી લગ્ન કરશી તો પોતાના આપશી અને બૈરું દિયર રખડે અને એને નહીં આપે. પણ ગરીબને કોઈ 5 પૈસા આપે છે? એક ઝૂંપડીમાં આપો. એક વાત કરું, એક ઝૂંપડીમાં માણસ રહેતો હોય ને એક આ કેવી બિસ્કિટ વાત આપો છે? તમે, એને આત્મા કેટલો શાંતિ થશે? આ કેવી વાત છે? આત્મા આ બધા બરાબર, તમે કોઈને કઈ હેલ્પ કરો તો સારી વાત છે, पर कहवा शू मांगू छू, मैं कहना क्या चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान साथी क्यों हुए? क्योंकि एक तो अर्जुन की बहुत भारी पुण्य थी कि भगवान खुद साथी हुए, और दूसरा क्या था, भगवान का खुद का कर्म का हिसाब ऐसा था कि अर्जुन का साथी होने का था, और अर्जुन की भी ऐसी पुण्य थी कि भगवान उनके साथी हुए। तो दोनों आमने सामने अपना कर्म का हिसाब सेटल कर रहे थे, ख्याल में वो हिसाब सेटल कर रहे थे। मगर अर्जुन को क्या हुआ, जब भगवान ने बताया कि ये सब आपके दुश्मन इनको मारने का है, तो अर्जुन को क्या हुआ, अरे ये जो दुश्मन है वो तो मेरे भाई है, मेरे कजिन है, तो उनको मैं मारूंगा तो फिर मुझे सुख कैसे मिलेगा? अर्जुन क्या सोच रहा था, वो जो प्रकृति के 3 गुणों है ना, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, ख्याल में, तो ये जगत सार क्या समझता है, सत्व गुण को पकड़ो। और अर्जुन ने भी ऐसी गलती की थी, अर्जुन ने भी ऐसी गलती। अर्जुन क्या सोच रहा था कि ये सब मेरे है। अर्जुन को क्या हुआ कि ये मेरे भाई है, ये मेरे रिश्तेदार है, इसमें मेरे मित्र है, मेरे गुरु है, मेरे पितामह है। तो ममता की वजह से अर्जुन को भीतर मन में विषाद खड़ा हो गया, सैडनेस इन हिज माइंड अर्जुन को। तो गीता का जो पहला चैप्टर है ना, विषाद योगा, ऐसे है, उनको विषाद खड़ा हो गया। तो फिर अर्जुन ने क्या किया, वो सत्व गुण का आधार लेके भगवान को सब आर्ग्यूमेंट करने लगा कि ऐसा ये सब मेरे हैं, उनको मारूंगा तो मुझे सुख कैसे मिलेगा, ऐसा मुझे हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो सत्व उनकी बात कर रहा था, अच्छे कर्म की, जो हमारी जो भाषा में बोलते हैं अच्छे कर्म, ऐसे ही बात कर रहा था। मगर भगवान ने तभी एक जगह पे उनको बताया, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन। हे अर्जुन, ये जो मन वचन काय की प्रकृति है वो 3 प्रकार के गुणों वाली है, सत्वगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और सारा जगत, जगत के सभी धर्म वो प्रकृति को तमोगुणी और रजोगुणी में से सत्वगुणी बनाने का सिखाते हैं। मगर तेरा कल्याण कब होगा, ये तीनों प्रकार की प्रकृति से तू पर होगा, तभी तेरा कल्याण होगा। आई मेरी बात समझ? तो भगवान अर्जुन को ये समझाना चाहते थे, मगर भगवान खुद अपने श्रीमुख से समझाते थे ने,
फिर भी अर्जुन को बात समझ में नहीं आती थी। सामने था फिर भी अर्जुन उनके सामने था और भगवान खुद के श्री मुख से बात समझाते थे, फिर भी समझ में नहीं आई थी। तो आज इतने 5,500 साल के बाद गीता पढ़ के, स्टडी करके, अभ्यास करके गीता का मर्म समझ में आए, हो सकता है? नहीं हो सकता है। और मेरा कहने का मतलब क्या है कि भगवान को समझाते थे, मगर अर्जुन को क्या था? अर्जुन को ऐसा नहीं था कि कृष्ण भगवान है। अर्जुन को ऐसा था कि कृष्ण इज माय कजिन, मेरा बुआ का बेटा है, फोइनो बेटो है, फोइनो छोकरो है। उनको ऐसा था। तो उनको ऐसा, इसका मतलब क्या है कि अर्जुन कृष्णवान जो भी बात करना चाहते थे अपनी मति से, अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न कर रहा था। सिंपल बात है। तो ऐसे तो मगर क्या था, अर्जुन में सरलता बहुत थी, बहुत सरलता थी। तो अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया तो तुरंत पूछेगा। इफ ही विल नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, इमीडिएटली ही विल आस्क। और आपको मैं बोलूंगा ने कि आपको समझ में आया, પ્રવીણભાઈ તમને સમજાયું? તો તમને થાય કે હા પાડ દઉં કે ના પડે, બીજા બે પ્રશ્નો કરે એના કરતાં છૂટી આવી. આથી સમજાય કે if I ask you some question and I reply you and then I ask you, Adi, you understood? Then what you will say? Yes. Even if you don't understand, then also you will say yes. कि चलो दूसरा तो प्रश्न नहीं करें. आई भाई बात समझ. मगर अर्जुन बहुत सरल था, तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आया तो फिर दूसरा प्रश्न करता रहा, फिर समझ में आया दूसरा प्रश्न. तो परिप्रश्ने न, बार बार प्रश्न करते करते ये सारी गीता बाहर आ गई, सारा गीता का ज्ञान बाहर आ गया. ये कर्म योग भी बाहर आ गया, ज्ञान योग भी बाहर आ गया, सांख्य योग भी बाहर आ गया, ज्ञान विज्ञान योग भी बाहर आ गया, भक्ति योग भी बाहर आ गया. सब कुछ, सब ज्ञान भगवान उनको दे दिया. मगर फिर भी अर्जुन को कुछ भी समझ में नहीं आया था. तो अर्जुन के मुंह से निकल जाता है, मति मूढ़ा, मेरी मति अभी मूड हो गई है. तो व्हाट अर्जुन सेज, that now my intellect is blunt, I can't understand anything. तो जब अर्जुन ने ऐसा बोला कि मारी मति मूड થઈ ગઈ છે, મને કંઈ સમજાતું નથી, तभी कृष्णवान समझ गए कि अर्जुन ने अनजाने में, unknowingly he accepted defeat of his own intellect. समझा? अर्जुन ने अनजाने में अपनी बुद्धि की हार कबूल कर ली, मीन्स अपनी बुद्धि को बाजू में रख दी. तो भगवान थे, भगवान करुणा वाले होते. तो भगवान ने सोचा भले समझ कर नहीं, अनजाने में, तो अनजाने में एटलीस्ट ही एक्सेप्टेड. तो फिर भगवान उनके ऊपर कृपा उतार कर उनको डिवाइन विजन देते हैं. डिवाइन विजन मीन्स दिव्य चक्षु, है ना? दिव्य चक्षु तो भी समझा, दिव्य चक्षु. तो हम जानते हैं कि भगवान ने दिव्य चक्षु दिया. दिव्य चक्षु दिया तो क्या हुआ, उनको विश्व रूप दर्शन हुआ. मीन्स सारा विश्व उनको जैसा है वैसा दिखाई दिया. पर हम क्या सोचते हैं कि विश्व रूप, तो विश्व तो विराट है, तो विराट दर्शन हो गया. फिर वो फोटोग्राफर ने भी रख दिया एक भक्ति भाव से कि कृष्ण भगवान का बड़ा स्वरूप, और कृष्ण भगवान ऐसा मुंह आहा करके खुला करते, तो भगवान के मुंह में पृथ्वी दिखाई देती, सब कुछ, ये गाय है, राक्षस है, सब कुछ दिखाई देते. एक भक्ति भाव से कि भगवान के अंदर सब समा हुआ है, ऐसा बता दिया. मगर भगवान ने जो विश्व रूप दर्शन करवाया ना, उनका मतलब क्या था कि भगवान उनको जब दिव्य चक्षु दिया तो अर्जुन को सारा विश्व एज इट इज, जैसा है वैसा दिखाई दिया. तो पहले अर्जुन को क्या था, पहले अर्जुन को लगता था ये मेरे कजिन्स है, ये मेरे मित्र है, ये मेरे गुरु है, ये मेरे पितामह है. पर भगवान ने जब दिव्य चक्षु दिया तो क्या हुआ, ये चर्म चक्षु वाली दृष्टि, ये चमड़े की आंख वाली दृष्टि,
सबके पैकिंग तक पहुंच गई, तो उनको दिखाई दे कि मेरे भाई है, मेरे गुरु है, मेरे मित्र है। मगर भगवान ने जो दिव्य चक्षु दिए, वो दिव्य चक्षु वाली दृष्टि पैकिंग को पेनिट्रेट करके, पैकिंग को भेद कर भीतर रहे हुए भगवान तक पहुंच गई। और अर्जुन को एट ए टाइम बाहर का चौला, बाहर का पैकिंग और भीतर के भगवान दोनों एक साथ में दिखाई दिए। अभी भीतर भगवान दिखाई देगा तो मोह रहेगा? मोह नहीं रहेगा। आपको पैकिंग दिखाई देगा तो मोह रहेगा। पैकिंग देख के आपको ओपिनियन फॉर्म हो जाए कि अच्छा आदमी है, अच्छा नहीं है, ऐसा है, वैसा है। मगर भीतर भगवान दिखाई देंगे तो पैकिंग की वैल्यू नहीं रहेगी। तो अर्जुन को ऐसा हो गया। तो ऐसा हुआ तो अर्जुन सोच में पड़ गया कि आज तक मैं ऐसा मानता था कि कृष्ण मेरा मित्र है, ही इज माई कजिन, मगर कृष्ण ने तो मुझे जीव मात्र में भगवान का दर्शन करवाया। तो ये कृष्ण कृष्ण नहीं है, मैं कृष्ण भगवान है, ऐसा साक्षात्कार तभी उनको होता है। आए मेरी बात समझ? तभी ऐसा साक्षात्कार होता है। और फिर बोलता है नष्टो मोह स्मृति लब्धा, मेरा मोह अभी नष्ट हो गया है, क्योंकि आपने जीव मात्र में मुझे भगवान का दर्शन करवाया। तभी मोह कैसे रहेगा कि नष्टो मोह, मोह अभी गया। फिर बोलते हैं स्मृति लब्धा, यहां भी लोग मार खा गए। लोग क्या समझ गए कि युद्ध का माहौल था, जैसे कोई शॉक लगता है तो मेमोरी टेम्पररी लॉस हो जाता है ना, तो उनको सबको ऐसा लगता है कि अर्जुन को इतना बड़ा शॉक लग गया था, हादसा लग गया था, तो अर्जुन का ऐसा टेम्पररी मेमोरी लॉस हो गया था और भगवान ने दिव्य चक्षु दिया, वापिस वो नॉर्मल हो गया, तो वापिस मेमोरी आ गई, स्मृति लब्धा, ऐसा बोलते। वो ऐसा नहीं था। अर्जुन क्या बोलना चाहता था कि मुझे मेरे निज स्वरूप की, मुझे मेरे आत्म स्वरूप की जो विस्मृति हो गई थी, आज मुझे उनका भान हुआ है, उनका रियलाइजेशन हुआ है। कैसे? तत्प्रसादेन, तेरी कृपा से। तो कि अभी मैं क्या करूंगा? तो करी से वचनम, तो अभी आप जो बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अर्जुन को भगवान खुद उनके सामने खड़े हैं, अपने श्रीमुख से बता रहे थे, फिर भी बात समझ में नहीं आती थी। क्यों? क्योंकि अर्जुन अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता था। और कृष्ण भगवान खुद भी जानते थे कि अर्जुन प्रश्न कर रहा है, बट ही विल नॉट अंडरस्टैंड। मगर वो भगवान है तो सिंसियरली, हार्टिली उनके सारे प्रश्न का उत्तर देते रहते। मगर अर्जुन की इतनी भारी पुण्य थी कि संजोग आ गया कि उनके मुंह से निकल गया कि अभी तो मेरी मति मूड हो गई है। तो उनको दृष्टि प्राप्त हो गई। तो कौन सी दृष्टि प्राप्त हुई? अंतर्मुखी दृष्टि। भगवान अर्जुन उनको कौन सी दृष्टि दी थी? आत्मदृष्टि। तो कि ये तो पैकिंग है, ये चौला है और भीतर भगवान है, मगर इससे वो नहीं दिखाई देगा। तो ये ऐसा हो गया। फिर उनको हुआ कि नहीं, चलो अभी आप जो बोलेंगे मैं करूँगा। ख्याल में? और वो भी भगवान ने उनको जो दृष्टि दी ने, वो 4-5 मिनट के लिए दिया। फिर भगवान ने देखा कि अभी उनका मोह उतर गया है, फिर दृष्टि वापस ले लिया था। समझा? तो गीता का ऐसा, गीता का ये मैंने आपको एक्सट्रैक्ट बताया कि गीता का सार है। मगर फिर दूसरा हम गलती बहुत बड़ी कहाँ करते हैं? कर्म को समझने के लिए। हाँ, विष्णु भाई कैसे ना कि सारा कर्म બંધ કેમ ના થાય, આમ કેમ ના થાય, આમ કેમ ના થાય. વાત ખોટી નથી એમની, સારી વસ્તુ છે ને કે એમનો એક છે કે ને આમ આપણે નક્કી કરીએ તો થાય ને, એ રીતે સારી વસ્તુ છે. પણ એક વસ્તુ છે कि कर्मों के लिए भगवान ने क्या बोला? हम किसको कर्म बोलते हैं? कि वॉट एवर वी आर डूइंग उनको हम कर्म बोलते हैं. वॉट एवर आवर फिजिकल एक्शन उनको कर्म बोलते हैं. हमारे जो हम वाणी से बोलते हैं उनको हम कर्म बोलते हैं. या हम हमारे मन में जो सोच आती है, विचार आते रहते हैं, उनको कर्म बोलते हैं.
બરાબર વિષ્ણુભાઈ? અમે કોઈને થપ્પડ મારી દે બધા શું કહેશે કે આ બહુ મોટી ભૂલ, કે આવું ના કરે એમ, કે અમે કોઈની પર ક્રોધ કરવા કે ને આવો ક્રોધ ना करવો જોઈએ. तो लोग क्रिया को ही कर्म मानते हैं, मगर लॉर्ड कृष्ण ने, कृष्ण भगवान ने कोई जगह पे क्रिया को कर्म बोला है? आप सारी सारी गीता ढूंढ निकालो. कृष्ण भगवान ने क्या बताया? हम श्लोक बोल जाएंगे. कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. बराबर है? आप बधाने खबर है ना, ये तो सबको पता होगा नहीं. आपको माँ शायद गीता पर नहीं पढ़ा होगा तो भी ये तो सबने सुना होगा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. इनका मतलब क्या हुआ कि कर्म करना तेरा अधिकार है. मीन्स कर्म करना तेरे कंट्रोल में है. मीन्स वेर योर से इज देयर, कर्म इज देयर. एंड वेर योर से इज नॉट देयर, योर कंट्रोल इज नॉट देयर, इट्स ए कर्म फल. ख्याल में? अभी एक सिंपल एग्जाम्पल दूँ कि प्रवीण भाई आज તમે સત્સંગમાં, आप सत्संग में आए तो ये क्रिया देख के लोग क्या बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा कर्म किया, कि आप पार्टी में नहीं गए, वो सॉकर की मैच देखने के लिए नहीं गए और ऐसा बैठ के सत्संग में आए, बहुत अच्छा कर्म किया, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? मगर यहाँ आना आपके कंट्रोल में है? ये चितेश में कितने लोगों को बोला था? 20-25 लोगों को बोला होगा ज्यादा, पर कितने लोग आ पाए? और ऐसे भी उनको बोला भी नहीं था, वो भी आ गया. आदि को बोला ही नहीं था. आपने बोला था? नहीं बोला था, फिर भी वो आ गया ना. यहाँ आके याद आ गया. हाँ, ये वलकल भाई को याद आ गया. हाँ, आपको ही नहीं याद आया था. तो मैं क्या बताना चाहता हूँ प्रवीण भाई, कि ऐसा भी होता है कि आपको फोन करेंगे कि आज सत्संग है, जरूर आना, और आपको इंटरेस्ट भी है और आपको आना भी है. एंड मोमेंट पे ऐसा काम आ गया तो इवन इफ योर सिंसियर डिजायर इज देयर, यू कैंट कम. तो आपके कंट्रोल में है. अरे कोई तो अहंकार क्या बोलेगा, अरे मैं कितना भी काम है छोड़ के आ जाऊंगा. पर मैं आगे बताऊं, कैसे चलो आप तैयार होकर निकल रहे हैं और ऐसा स्लिप हो गए, वो इतना पेन हो रहा है कि बैठ भी नहीं सकते, खड़े भी नहीं रह सकते. तो इवन इफ यू वांट टू अटेंड सत्संग, इज इट पॉसिबल फॉर यू? नो. तो जो आपके हाथ में नहीं है उसको भगवान ने क्या बताया? मैं नहीं बोलता हूं, कृष्ण भगवान ने क्या बताया? कर्म फल. मगर कर्म फल को हम कर्म मानते हैं. आखू कोरू शाक में गयु, समझाए? आखू को, भगवान की बात गलत नहीं है, भगवान की बात सही है, मगर हम गलत समझ ले उसे भगवान क्या करे? तो ये क्या हुआ कि जो आपके हाथ में नहीं वो कर्म फल है. तो यहाँ आके आप बैठते हैं वो भी कर्म फल हो गया, आप सुनते हैं वो भी कर्म फल हो गया. किसी को ये है ने क्या के पेली आप पेली સીવું છે ને એને ના સાંભળવું હોય ને તો ફસાઈ જાય ને, આવવું પડે કે ના આવવું પડે? નહીં આના તો બી આના પડેગા ને, કે ભાઈ જવું તો પડે ને, કેમ એના જ ઘરે આવ્યા છે એટલે આવવું પડે કે ના આવવું પડે? एक समझने के लिए. तो कभी ऐसा संजोग ही हो जाता है ना. तो यहाँ आना आपके हाथ में नहीं तो कर्म फल हो गया है. तो हम आप मुझसे बात करें कि आपके हाथ में है, ऐसा लगे हाँ मेरे हाथ में है, मगर बहनों को पूछो, मानो किटी पार्टी है, किटी पार्टी है, करते नहीं यार? तो किटी पार्टी है और बहनें गए आप, और आपकी कोई फ्रेंड आने वाली है, वो थोड़ी ज़्यादा ओवर वाइज है, तो आप डिसाइड करके जाते हैं कि आज तो पार्टी में सबके बीच में उनको सुना देना है, सबके बीच में उनको कट टू साइज कर देना है. सब डिसाइड करके जाएंगे, भाई उधर जाएंगे तो बोल ही नहीं पाएंगे. ऐसा होगा कि नहीं होगा? डेट मीन्स बोलना आपके हाथ में नहीं है. तो क्या नहीं बोलना आपके हाथ में? कभी ऐसा डिसाइड ये बात निकले मुझे बोलना ही नहीं है, मगर संजोग ऐसा आ जाता है कि बोल देते हैं. सत्संग में जैसे सत्संग में आना आपके हाथ में नहीं है, तो नहीं आना आपके हाथ में है. अरे कभी कभी ये आपको बोलेंगे
कि चलो भाई आपको प्रवीण भाई आपको आने का है, आप उनको बोलेंगे कि अरे भाई आपको पता है मुझे सत्संग में इंटरेस्ट ही नहीं, कुछ पार्टी वार्टी मुझे बोलना, मैं जल्दी आ जाऊंगा, बिफोर टाइम आ जाऊंगा, आपका सब हेल्प भी करूंगा, बस सत्संग में मैं नहीं आऊंगा। तो ये क्या बोलेंगे, नहीं नहीं आज तो आपको आना ही पड़ेगा। इतना क्लोज फ्रेंड है तो आप सोचेंगे मैं नहीं बुरा लगेगा, तो क्या करेंगे, फिर क्या टाइम है कि 6 से 7 का है तो फिर क्वार्टर टू 7 आ जाते हैं मुंह शकल दिखाने के लिए, आके बैठते, पीछे जाके बैठेंगे और जैसे पूरा हुआ सब सर। अभी मन के विचार को लोग मन में जो विचार आते हैं वो करोगे, मन में जो विचार आते हैं मगर मैं क्या बताता हूँ, मन में जो विचार आते हैं, आपको अच्छा विचार करना है तो अच्छे विचार कर सकते, बुरे विचार को बंद करना है तो बंद कर सकते। तो मन में जो विचार आते हैं ना वो भी कर्म फल है, क्योंकि माइंड इज ए बंडल ऑफ थॉट, बंडल ऑफ थॉट्स, वो आप पिछले जन्म में लेके आए हैं और उसमें से एक के बाद एक विचार थॉट बाहर स्प्राउट होता है। तो मन में जो विचार आते हैं वो भी कर्म फल है। आई बात समझ में? और यहाँ आपको थंब रूल दे दूं तो अपने भगवान ने क्या है, अपनी 5 इंद्रियों से with our 5 senses whatever we can experience, all that thing is કર્મ ફલ। 5 ઇન્દ્રિયોથી જે કંઈ અનુભવમાં આવે છે એ બધું કર્મ ફળ છે, કર્મ નથી। તો પછી પ્રશ્ન ઉભો તો then where is the કર્મ? પ્રશ્ન रहेगा कि नहीं रहेगा? तो then where is the કર્મ? તો તમને સમજાવું, હવે 10 મિનિટ લાગશે તમારે જોવું, પણ તૈયારી માટે જોવું જજો। ના ના બેહો તો બેસો, વાંધો નહીં, આ ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, હા બોલજો, કઈ ઉતાવળ નથી આપણે। तो શું क्या बोलते हैं, तो भाई कर्म कहाँ है? आदि समझ में, ये सब कर्म फल है, देन वेयर इज द कर्म? आपको फोन किया, वलकल भाई ने फोन किया, आप यहाँ आ गए, आपकी इच्छा भी थी और आप विदाउट हेजिटेशन, आपने कोई ऐसा भी नहीं बोला कि मैं बिजी हूँ, ये हूँ, ठीक है आ जाता हूँ, वेरी प्रॉम्प्टली ही सेड कि यस आई एम कमिंग। फिर भी वो आंख से दिखाए, आप आके बैठे, तो ये आपका कर्म फल है। तो फिर कर्म कहाँ है, ढूंढना पड़ेगा ना। यह आधा ज्ञान हुआ અને અધૂરો ગળો છલકાય। आ इंडिया में अपने हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नुकसान ये आधे ज्ञान से हुआ है। सब बोलते हैं जो होने वाला होगा, जो होने वाला होगा, नियति नियति बोलते हैं ना, मगर होने वाला होगा मगर आपके हाथ में क्या है वो भी देखना पड़ेगा ना। ये तो ठीक है, वो सब कर्म जो होने वाला होगा, कर्म फल में जो है वो होगा, बट व्हाट इज इन योर कंट्रोल? समझाय विष्णुभाई? હું તમને આ સાચી વાત સમજવા માટે વાત કરું છું। તરુણભાઈ બોલો, તમારા હાથમાં શું છે? તમારા હાથમાં શું છે હવે એ મને કહો। આપણે ધારેલું કઈ છે ને અજુગતું બની જાય એ કશું નથી આપણા હાથમાં। હા એટલે ધારેલું થતું ને હજુ તો એ થઈ જાય છે એટલે આપણા હાથમાં કશું જ નથી ને। ના ભાઈ એવું નથી। કૃષ્ણભાઈ શું કીધું કે કર્મण्यवाधिकार હશે, કર્મ કરने का तेरा अधिकार है, मीन्स वेयर योर कंट्रोल इज देयर, वेयर योर से इज देयर, वहां कर्म है, वो जानना तो पड़ेगा ना। जो તમને એક સિમ્પલ જલ્દી દાખલો આપી દઉં કે अब આપણે આટલી ઓળખાણ થઈ ગઈ બરાબર, हमें इतनी पहचान हो गई और फिर मैं आप भी सूरत जाने वाले हैं और आपका भी वहाँ फ्लैट है, तो आप मुझे बोलेंगे कि आप जरूर मेरे घर पे आना, बराबर? तो मैं भी सोचूं भाई तरुण भाई इतने अच्छे हैं, चलो उनके घर पे चले जाएंगे। अभी मानो मैं इंडिया आया और आपके घर पे आने के लिए निकला, तो मैं सिंगो से वहाँ आऊँ तो 1 घंटा लग जाता है। तो मैंने सोचा कि सिंगो पे सब मिलने के लिए आते हैं ना, तो जब निकलेंगे बाद में बात करेंगे, बाद में फोन करके बताऊंगा। तो क्या हुआ कि हम निकले और भाई मेरा फोन ही भूल गया, तो रास्ते में आपको बताना था, मैं अभी बताओ कैसे, तो ये फोन नंबर ही नहीं है, बराबर है। तो फिर क्या सोचा कि चलो पहुंच जाते, घर तो देखा है ना, क्योंकि वो फ्लैट में दूसरे लोग रहते थे जिनको मैं पहचानता था। तो आने में फिर रास्ते में ऐसा एक्सीडेंट हो गया कुछ, तो ट्रैफिक जाम हो गया 1 घंटे के लिए।
तो मुझे पहुंचने में रात को 10 बज गए। तो मैं सोचता कि अभी जाऊँ कि नहीं जाऊँ। फिर सोचा कि तरुण भाई ऐसा है तो बहुत अच्छे आदमी, तो चलो अब पहुँच जाते, कोई बात नहीं, क्योंकि फिर दूसरी बार स्कोप नहीं मिलेगा। फिर मुझे तो साउथ इंडिया की ट्रिप में जाने का, सत्संग ट्रिप में, चलो आज ही स्कोप है। अभी मैं आया रात को 10 बजे, तो मेरे साथ कार में दूसरे 3-4 लोग भी होते हैं ना, तो हम सब आए, आपका बेल बजाएंगे और आप देखेंगे मुझे, तो आप क्या करेंगे? आप देखेंगे मुझे तो क्या करेंगे? हाँ, क्या ये पधारिए, नहीं? हाँ, वेलकम तो करो ना। अभी मान लो 5 मिनट के लिए, ये मैं जो आपको एग्जांपल देना, इसके लिए मान लो कि आपके वाइफ है, उनका नेचर थोड़ा स्ट्रांग है, कड़क है। उनके वाइफ का नेचर स्ट्रांग है, कड़क है, और वो सो गए हैं, थके हुए पूरा दिन का। तो हम आते हैं तो फिर आप बोलेंगे कि आप बैठो बैठो मैं चाय बनाता हूँ। तो मैं आपको बोलूँगा नहीं नहीं अभी चाय नहीं पीना है। तो आपको कितनी शांति, घास बच गए, ठंडक हो गई, घास बच गए। फिर मैं सोचता हूँ कि भाई इतने अच्छे आदमी है और यहाँ इतने मिले हैं, इतनी शांति से बात, और ऐसे एक दूसरे को पहचानते भी है। तो मैं आपको धीरे से बोलता हूँ कि तुम भाई एक काम કરો, તમે બેનને ઉઠાડો અને અમને અત્યારે ખીચડીને શાક, ખીચડીને કઢી અથવા બાકીને શાક સાદું બનાવી આપો। सर सिंपल खाना बना दो, क्योंकि हम घर से निकले थे, वहाँ से संयम धाम से निकले थे, तो थोड़ा लेट हो गया था। सोते कि यहाँ आके आपके पास भोजन करेंगे, मगर ये फ़ोन भी रह गया और फिर आपको बताना क्या रह गया। मगर हम बाहर, आपको पता है हम बाहर का तो खाते नहीं है, बाहर भोजन करते नहीं है, तो फिर क्या होगा, आपके लिए पजल हो जाएगा। क्योंकि आपकी वाइफ सो गई है, वो तेज दिमाग की है, उनको बोल भी नहीं सकते भाई उठो और खाना पकाओ। फिर भी ऐसे धर्म संकट में आ गए तो क्या, जाके उठाना तो पड़ेगा ना। अभी जाको अपनी वाइफ को उठाएंगे तो वो तो पहले क्या करे, सीधी आपके ऊपर चिल्लाएगी, आग बबुआ हो जाएगी, अरे भाई मैं इतनी सोई हूँ क्यों उठाते हैं। तो आप बोलेंगे अरे वो भरतानंद जी आए हैं ना तो खाना पकाने का है। अरे आप जहाँ तहाँ घूमते रहे, सबको इन्विटेशन देते रहते हैं, आपको जहाँ लेके जाओ, मैं तो इतनी थकी हूँ, मैं बाहर भी आने वाली नहीं हूँ। तो फिर कैसे धर्म संकट में आ जाते हैं। मगर आप भी कच्ची माया नहीं है, आप बल्कि काची माया हो विष्णु भाई, वो भी जानते हैं कैसे उनकी दुखती हुई नस दबाना। तो क्या बोलेंगे कि देखो मैं तो मेरे मित्र के वहाँ भोजन करने के लिए लेके जाऊंगा, मगर वो लोग वापिस आएंगे, कहूँगा चट्टानूगा तो वापिस चट्टानूगा आएंगे तो सबको क्या बोलेंगे कि भाई मैं तरुण भाई के घर पे गया था इंडिया में, तो उनकी वाइफ तो बाहर भी नहीं है, ग्रीट भी नहीं किया, उनको भोजन के लिए दूसरी जगह लेके जाना पड़ा। तो मेरा खराब नहीं दिखाई देगा, तेरा खराब दिखाई देगा। तो क्या होगा, उनको एकदम इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, खड़ी हो जाएगी नहीं, इवन दो शी इज टायर्ड, खड़ी हो जाएगी और आके ग्रीट भी करेंगे, खाना भी बनाएगी। और मैंने तो बोला कि भाखरी और सब्जी चलेगा, मगर ऐसा तो करते नहीं, 5-7-8 आइटम बना लेते हैं, सब घर में है वो भी निकालते, पापड़ निकालते, अचार निकालते, कुछ स्वीट पड़ी है वो भी निकालते। तो वो सब करेंगे और फिर भीतर आप जब खाने के लिए बैठूंगा ना तो आग्रह करके, मनवार करके, आग्रह करके खिलाएंगे, बराबर कि नहीं अभी तो खा लो, खाओ, अभी तो सुबह उठ रहा, आज को सो जाना ही है ना, खाओ आराम से। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आपने मुझे वेलकम किया, फिर वाइफ को उठाया, खाना पकाया, आग्रह करके खिलाया, ये सब तो 5 इंद्रिय से अनुभव में आया ना। तो ये तो सब कर्म फल हो गया। तो कर्म कहाँ है, तो अंदर सब मन में सब चलता है ना, ये कैसे आप तो पुत्र है, कैसे संत है, आधी रात को आते, और आधी रात को आए तो फिर बोलना तो नहीं चाहिए, सुबह में तो खाना मिलने वाला ही था ना, तो रात को सो जाना चाहिए शांति से, कुछ मैनर है ही नहीं, फोन नहीं करते, सब अंदर चलता है ना भीतर। अभी ये अंतस्करण मन में ये सब चलता है नहीं, वो भी कर्म फल है, मगर कर्म कहाँ है वो आपको बताता हूँ कि ये सब चल रहा है। तो आपको क्या होगा, आप अपने मन के साथ बात कर सकते हैं, आप अपने अंतस्करण के साथ बात कर सकते हैं,
उनको बोल सकते हैं कि देखो तरुण भाई, ये हम तो आर्य है, हमारा आर्य संस्कार क्या बोलता है, अतिथि देवो भव, बराबर है। अतिथि मीन जो तिथि बताए बिना अटपके उनको अतिथि बोलते हैं। तो अतिथि का देव के समान सत्कार करना चाहिए, तो आप ऐसा क्यों नेगेटिव ले रहे हैं? तो ऐसा इनको समझाएंगे ना, वो समझ जाएगा। और बाई चांस वो फोर्स इतना भारी है कि आपका मन नहीं समझता है, तो मन को क्या बोलेगा, भाई आपको जो सोचना है सोचो, मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। क्या मैं वॉट एवर यू वॉन्ट टू थिंक यू थिंक, आई डोंट एग्री विथ यू। ये आपके हाथ में है कि नहीं है? दिस इज टोटली इन योर कंट्रोल। तो यहाँ आपका नया कर्म बनता है। तो क्या हुआ कि आपका कर्म फल पॉजिटिव है, और नया कर्म ऐसा जो चेंज नहीं करते तो नया कर्म नेगेटिव हो जाता है, खिलाने के बाद भी नेगेटिव हो जाता है। और ऐसा बात करके चेंज किया, या तो उनके साथ डिसएग्री हुए, नेगेटिव के साथ डिसएग्री हुए, तो आपका कर्म पुण्य कर्म हो गया। आई मीन्स एक्शन इज सेम, बट योर न्यू कर्म कैन बी पाप और पुण्य। समझे हुआ? अब આ સમજવા બધી વાતો સરસ છે, ફાઇન છે। આ પ્રસાદ હતા થોડી આગળ વાત કરી દો એટલે તમને ક્લિયરલી સમજે। પ્રવીણભાઈ, આ તમારું કયું ગામ તમારું? मुराद हाँ, मुड़द, हाँ बराबर। એટલે ખાલી આ તમને સમજવા માટે समझने के लिए एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपका छोटा रिमोट टाउन है और वहाँ सब बच्चों को पढ़ाई का प्रॉब्लम होता है, और आप अमेरिका से वहाँ गए और ये सब बहुत सालों के बाद जाते हैं, तो गांव में तो सबको पता चलेगा कि आए हैं प्रवीण भाई, आए प्रवीण भाई आए। तो वहाँ वो लोग एक स्कूल का प्रोजेक्ट खड़ा कर रहे हैं, तो फिर उनको पता है कि आपके पास आ जाएंगे और बोलेंगे, अरे प्रवीण भाई आप तो इतने साल से वहाँ है, आप यहाँ स्कूल में पढ़े थे, कितनी प्रॉब्लम है ये सब आपको पता है, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हम यहाँ स्कूल बनाते हैं, एटलीस्ट आप 1 करोड़ रुपया डोनेशन देंगे। तो फिर अब मान लो कि आपकी वाइफ है ना, नेचर अच्छा है, उसका चेंज कर लेना, ये तो एग्जाम्पल के दिए बोला था। अभी उनकी बात करते हैं कि प्रवीण भाई, मानो कि आपका नेचर ऐसा है कि आप अच्छे काम में खर्च कर नहीं सकते, पार्टी दे सकते, दूसरा सब कर सकते, अच्छे काम में खर्च करना है, थोड़ी देर के लिए मान लो। हाँ, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लो। तो फिर वो लोगों ने क्या किया कि जो बड़े बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको लेके आए और प्रेशर करके 21 लाख रुपीस का डोनेशन लेके गए। अभी मुझे पता चला तो मैं क्या करूँगा, जब आपको मिलूंगा तो आई विल अप्रिशिएट कर, प्रवीण भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसे अच्छे काम में आपने डोनेशन दिया, बहुत अच्छा किया। तो आप क्या बोलेंगे, अरे भरता जी बात ही मत करो, मैं तो 1 रुपया देने वाला नहीं था, ये लोगों ने प्रेशर के इसलिए मुझे देना पड़ा। आई बात समझ? इसका मतलब क्या हुआ कि योर कर्म फल इज पॉजिटिव बट न्यू कर्म नेगेटिव। तो 21 लाख का डोनेशन देने के बाद भी आप नया पाप बनाते हैं। फिर दूसरे केस में क्या होगा, मैं आपको पूछूंगा, आप बोलेंगे कि भरतान जी आप जानते हैं मेरा नेचर कैसा है, बस अच्छा हुआ ये लोगों ने प्रेशर करके इतना ले लिया ना, तो मेरा से एक अच्छा काम तो हो गया। तो आपका कर्म फल भी पॉजिटिव हुआ और नया कर्म भी पॉजिटिव हुआ। वही थर्ड एग्जांपल देता हूँ कि मानो आपका कोई क्लासमेट है, वो तो छोटा आदमी है, जैसे तैसे करके अपना गुजारा चलाता है, तो उनको उसने जब सुना कि अरे मेरे मित्र प्रवीण ने तो ऐसे अच्छे काम के लिए 21 लाख का डोनेशन दे दिया, मेरे पास पैसे, मेरे पास होता तो मैं भी देता था, है बस में। तो क्या हुआ, उनका कर्म फल नेगेटिव है, मगर विदाउट गिविंग ए सिंगल रुपी ही इज एडिंग न्यू कर्म इन हिज कर्मिक अकाउंट एज इफ ही हैज डोनेटेड 21 लाख रुपीस। आई भी बस में। और चौथा एग्जाम्पल देता हूं कि वही आपका फ्रेंड आपको क्या बोलेगा, अरे प्रवीण भाई आप जानते नहीं है, आप तो अमेरिका रहते हैं, यहाँ के लोग कैसे हैं, ये सब पैसे उनकी सबकी जेब में जाएगा, कुछ काम होने वाला नहीं, आपने बहुत बड़ी गलती की। तो क्या हुआ, उनका कर्म फल भी नेगेटिव है और नया कर्म भी नेगेटिव है। आई मेरी बात समझे? तो आपको क्या करना चाहिए कि फाइनल जो एंडोर्समेंट है, फाइनल जो सिग्नेचर है, वहाँ नया कर्म बनता है, तो वहाँ आपको अलर्ट रहने का। तो मैं बताऊं कि सुबह से शाम तक कितनी सारी बार आपसे नोइंगली अननोइंगली नेगेटिव में सिग्नेचर हो जाती है, वहाँ अलर्ट हो जाओ और सिग्नेचर पॉजिटिव में कर दो,
तो आपके सारे नए कर्म पुण्य कर्म होंगे। आई मेरी बात समझ? तो कृष्ण भगवान जो बताते हैं ना गीता में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, में जहाँ सारा जगत सो जाता है वहाँ संयमी जागते हैं। तो हमें क्या लगता है कि, और जहाँ सारा जगत जागता है वहाँ संयमी सो जाते हैं। तो हम क्या सोचते हैं कि सारा जगत रात को लेट सो जाते हैं और ये सब लोग तो जल्दी जल्दी सो जाते हैं और फिर सुबह में जल्दी उठते हैं, तो जब हम सोते हैं तब वो जाग जाते हैं, ऐसा मानते हैं। भगवान क्या कहना चाहते थे कि संयमी है ने तो सारा जगत कर्म फल के पार्ट में जाग रहा है कि मेरा खराब न दिखाई दे, मगर जहां नया कर्म बन रहा है वहां सो रहा है। मुझे संयमी लोग कैसे होते हैं, कर्म फल के पार्ट में सोते हैं और नया कर्म बनता है वहां जागृत रहते हैं। ऐसी भगवान की बात है। समझा? आपको समझ में आया? थोड़ी बात नहीं है आदि, आपको समझ में आया? थोड़ी हायर लेवल की बात है मगर समझ में आ जाएगी, ऊपर से नहीं गई। तो आपको अभी क्या करने का, यहाँ काम करते हैं ना, तो कभी किसी कोई भी व्यक्ति के प्रति नेगेटिव खड़ा हो जाता है ना कि आदमी अच्छा नहीं है, ऐसा है वैसा है, तभी अंदर से चेंज कर देने का कि भाई उनका जो भी है, जो मुझे लगता है वो तो उनका कर्म फल का पार्ट है, मुझे क्या लेना देना, और उनका भीतर पुरुषार्थ क्या चल रहा है, नया कर्म क्या बना है वो तो मुझे पता नहीं है। तो आफ्टर ऑल भीतर भगवान है तो आफ्टर ऑल इज ए गुड मैन, ऐसा रखने का। आई बात समझ में? ऐसा चेंज करते रहने का, બરાબર ને? ફાવશે ને? તમારે તો આ શુદ્ધાત્મા જોવાને એટલે બધું પતી ગયું. તો હું તમને છે ને તમને ત્રણેયને પેલી પ્રાર્થના ગુજરાતીમાં મોકલી આપીશ સવાર સાંજની, એટલે કરજો. ફરી મળું ને આ તમને ચારેને, એટલે તમે કરજો. और आपको हिंदी में भेज दूंगा, यू कैन रीड हिंदी. हाँ तो अच्छा, ये सुबह की और शाम की जो प्रेयर है ना, आई विल सेंड यू इन हिंदी, बराबर है. और नेक्स्ट डे कभी भी मैं आऊँगा, आई विल फोन यू, आई विल कॉल यू एंड आई विल आस्क यू वेदर यू आर डूइंग दैट असाइनमेंट और नॉट. ऐसे भी लगता हूँ बहुत सिंपल, बट आई एम ए वेरी स्ट्रिक्ट टीचर. हाँ तो ध्यान रखना. વિષ્ણુભાઈ બરાબર ને? આ બાબતમાં સ્ટ્રિક્ટ રહેવું પડે ને, તો આટલું તો એગ્રી થાય છે. સારું છે. થોડી આ વાતો છે ને જરા હટકે છે પણ સમજવા જેવી છે. આ ભગવાનની દરઅસલ વાત આપણને સમજમાં આવે એટલે આપણે આટલો પુરુષાર્થ અત્યારે કરવાનો કે આ બહાર સંજોગો ગમે એવા નેગેટિવ ઊભા થાય પણ આપણે અંદર આપણું પોઝિટિવ રાખવાનું. એટલે આટલું થયું ને એટલે મોટા મોટું કામ થઈ ગયું. આ ભગવાન રામ છે ને, તમને સમજાવું. એટલે કોણ કહેજો લઈ આવજો. આ તો લાયા નથી એટલે હું ચાલુ રાખું. પ્રસાદ લઈ આવે ભલે. હા ના કયું આવે? હા નહીં, હવે નેક્સ્ટ યર ફેબ્રુઆરીમાં આવું. તો બધા અહીંયા હશો તો હું આવીશ. ક્યાં લઈ જશો? ઓતારી કયા હોલમાં? હા અચ્છા ના આવીશ. આ તો આ બધા માણસોને પ્રેક્ટિકલ વાતો છે, કામમાં લાગે. એની આખી જીવનની આખું આ ડાયરેક્શન બદલી જાય. એટલે તમને એડવાન્સમાં ઇન્ફોર્મ કરીશ. આવવાનું થાય ને, આમ જનરલી હું આ બાજુ નથી આવતો વિન્ટરમાં. હું ત્યાં કેનેડામાં જઉં છું. ત્યાં ઠંડી બહુ હોય ને એટલે મને ત્યાં ગ્રાહકી વધારે મળે. મારો ધંધો સારો ચાલે.